understand my commands, to answer my questions. And then if she is able to understand, I will communicate with my patient and will inquire about her complaints of how is her recovery in the past 1 week, and about her feelings of with the baby. Does she feel any lack of attachment with the baby, or any thoughts of self-harm or baby harm? And I will also inquire about my patient, how is her sleep, appetite, and her hygiene, and what are her relationships with the people around her, her family members. Does she got enough support? Is she taking enough sleep? And I will inquire my patient about her pregnancy. How was her pregnancy? Did she had any complication in the antenatal period? And what was the cause of her LSCS? Did she had any labor, prolonged labor, or any complaint of complication? What is the gender of my patient's baby that she has delivered? And I will also inquire my patient about any about her antenatal complication like diabetes, preeclampsia, or any multiple pregnancy, any history of anemia during the pregnancy. I will ask my patient about any comorbids like diabetes, hypertension, and any previous mental disorders or bipolar disorders in her or in her family member. I will inquire my patient about her relationship with the husband and the family. Just a minute. I'm in my class. I will also inquire my patient about any history of the drug abuse by signposting and inquiring about any history of alcohol addiction or any substance abuse. I will inquire that is she any complaint of domestic violence or any history of trauma or anything that is bothersome to her at home or at her workplace. I will be inquiring my patient about what is her socioeconomic status and any complaint of drug allergies. Then I will proceed towards her examination, in which I will be doing her Hold on, general Tatia. assessment in. Hold on. Her baby was sudden IUD at term, and Okay, she had postpartum hemorrhage, and she also had the suicidal thoughts at the moment. Okay, madam. Based upon these findings, I will first of all declare this situation as one of the provisional diagnosis as puerperal psychosis or postnatal psychosis. Based on her symptomatology, and I will meanwhile I will be inquiring the cause of her IUD, and how was her PPH managed, and how was when was she discharged back home, and on what medications. And with that I will be counseling the patient if she is able to understand, or the family member, for the urgent admission, because it is a psychiatric emergency, and we will be offering the patient admission in a psychiatric ward, and will be managing my patient an illness on with a multidisciplinary team that include a senior gynecologist, a psychiatrist, a psychologist, and a support nurse. There she will be offered there she will be offered support and support and encouragement, and she will be explain about the situation and provide treatment starting from the clinical behavioral therapy, and good sleep, and like talk therapy. She will be given psychotherapy, which is called cognitive behavioral therapy, and she will be started on the pharmacological therapy. And in this situation we will be offering her mood stabilizers in the form of the lithium, and antidepressant, or the neuroleptics like SSNRIs or SNRIs, or we can also give her the tricyclic antidepressants. And during this period she will be counseled for the compliance to the medications. She will be offered social support, and she will be counseled for the follow-up, and if stabilized she will be discharged back home with red flag signs to report. If there is any red flag sign, she has to report back to the hospital, and she will be counseled about the side effects of the medication. And we will be explaining about the risk of the recurrence in the next pregnancy. I will offer my patient support for the breast enlargement. Since the baby is IUD, I will prescribe my patient tablet Brutin for and warm compresses and pain and relief for the breast enlargement, and she will be given a safe birth spacing based upon her next pregnancy plans. And I will also provide my patient with a patient information leaflet. Okay. What will you tell her about the recurrence of this condition in the next pregnancy? Madam, I will explain that it has got a very high recurrence risk of 1 in 50%.
Okay. And what if the patient has already problems with her family, the same mental issues? Then what is the incidence of this psychosis in Madam, them? you mean that there is a family member who is also having a psychiatric illness? Yes. Madam, then it's even more increased, and the exact number was off of my mind. मैडम शायद पहले नॉर्मल वाले में शायद इसमें पता नहीं इसमें 10 से 12% और इंक्रीज हो जाता है. Anybody knows recurrence? If one of the family member has any disorder, then patient में कितना परसेंट होता है? डॉक्टर मैडम मुझे 50 to 70% मैडम. हाँ, 70 तक होता है. 1 in 2 ठीक है. ओके. नॉर्मली 1 in 4 होता है. अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो 1 in हो जाता है. 2 होता है. ठीक है. आदि आपने 8 मिनट में अपना स्टेशन कंप्लीट कर लिया. इसमें पहले तो मुझे ये बताओ कि बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स, दिस 1 week history of her LSES, she is now lethargic. ठीक है. She is lethargic, she is agitated and not feeling well, and breasts are engorged. Based on this history, what would be your differential diagnosis apart from psychosis, postpartum psychosis? Madam, my differential diagnosis will be madam postpartum mastitis हो सकता है. It could also be postpartum febrile illness and postpartum depression. Febrile illness, postpartum And even depression blues. and mastitis. ठीक है. कोई जी, madam. electrolyte imbalance भी हो सकता है, and she can be anemic because she had PPH. Yes, madam, anemic. ठीक है. So your differential diagnosis should be this. But what about the examination? Did you do examine her? No, Anemia madam, I related forgot. cause? I just did her general assessment and I got her admitted. I forgot this thing Did altogether. you Just examine मैंने her उसको emergency breast? breast. No, I didn't. I forgot this point. Okay, this is very important. Big अगर blunder. आपका टॉपिक एक Yes, madam. पर्टिकुलर है, इट डजंट मीन कि सिर्फ वही वाले क्लूज आपके सिनेरियो में होंगे. सिनेरियो एज अ होल होगा, उसको मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं. आपसे उनको डिफरेंशियल बनवानी है तो दे विल पुट सम अदर डिटेल्स एज वेल. ठीक है. Yes, madam. तो सारी इसकी चीजें उसमें देखनी थी उसकी yes, लोकिया इसकी और वो बेसिस पे सारा 3-4 कुछ. जो है ना डिफरेंशियल आराम से बनती हैं. यू शुड नॉट इग्नोर द अदर डिटेल्स. ठीक है. जी मैडम. इसका जो मैसेज था पूरे सिनेरियो का वो यही था. अच्छा, अब आपकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं. स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया. आपने बोला कि मैं पेशेंट को असेस करूंगी पहले तो इफ शी एबल टू कम्युनिकेट और नॉट. इन द स्ट्रक्चर डिस्कशन यू विल से दिस. यस, बिल्कुल ठीक है. और जब आपने हिस्ट्री लेनी है देन यू विल से टू योर पेशेंट, आप उससे परमिशन लेंगी कि आप मैं आपसे आपके मसले के बारे में बात करना चाहूंगी, आप कोऑपरेट करेंगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एजिटेटेड पेशेंट यू हैव टू सी इफ शी इज एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, और शी रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज आप कोई बात करते हो या लेट्स सपोज पेशेंट से हैंडशेक भी करते हो तो पेशेंट जो है वो बहुत एजिटेटेड हो जाता है, ये वाले पेशेंट. ठीक है. अगर साइकोसिस सीवियर वाला साइकोसिस है. देन आपकी हिस्ट्री में आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें पूछी. लेकिन ना इसमें मैं आगे चल के आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि इसमें आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है. ठीक है. आपकी हिस्ट्री में सारे पॉइंट्स थे. यू आस्क्ड फॉर हर सीजर, क्यों सीजर हुआ, और उसमें फिर अगर आप शुरू में ही पूछ लोगे ना बेबी का आउटकम, इज द बेबी इज ऑल राइट, देन एग्जामिनर देयर एंड देन विल टेल यू कि बेबी इज आईयूडी. आपने बहुत डिटेल हिस्ट्री ली लेकिन बेबी का जो स्टेटस था ना, यू अज्यूम्ड के बेबी इज ऑल राइट, जबकि ब्रेस्ट इंगोल्ड है. आपकी बत्ती जल जानी चाहिए यहाँ पे कि मुझे फौरन से बेबी का आउटकम पूछना चाहिए. ओके मैडम. ठीक है ना. दूसरी टिप यहाँ पे जो सीखने की बात थी वो ये, जी जी.
आप देयर एंड देन शुरू में ही जो हमारे 6 P's हैं पोस्ट नेटल पीरियड में, वो यही इसी वजह से तो है। कोई सा भी मसला पोस्टपार्टम पीरियड में आएगा तो वो आपको इन्हीं 6 क्वेश्चंस पूछने पे मिल जाएगा। ठीक है, कि आपको कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है ये सिनेरियो। ठीक हो गया। आपको मैं फौरन बता देती, बेबी आईयूडी था, शी हैड पीपीएच। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसको मैनेज तो बिल्कुल सही कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट में मैं एक चीज आपकी करेक्ट कराना चाहूंगी। आपने मैनेजमेंट में सारी जो ट्रीटमेंट की बात करी ना, आपने मैनेजमेंट में सारी, आपने उसमें मूड स्टेबलाइजर्स भी डाल दिए, आपने एंटी डिप्रेसिव्स भी डाल दिए, आपने एंटी साइकोटिक्स भी डाल दिए। सब चीजें तो नहीं जाती ना। मूड स्टेबलाइजर्स आर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मैनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। और एंटी डिप्रेसिव्स डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए। आपकी पेशेंट प्रोबेबली आप डायग्नोज कर रही हैं सुसाइडल थॉट्स है, तो ये साइकोसिस में है, तो साइकोसिस में तो एंटी साइकोटिक्स देंगी ना। फिर आप एंटी साइकोटिक्स बोलें और फिर आगे बोलें कि इन फॉर्म ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI, SNRI, ये है आपकी एंटी साइकोटिक्स। ठीक है। जी मैडम। जी मैं शेयर कर दूंगी सारी डिटेल्स जो जो ट्रीटमेंट होती है, लेकिन आपको मेन ये पता होना मैडम चाहिए कि इस पेशेंट में आपको एंटी सॉरी डॉक्टर पलवशा, वो एंटी साइकोटिक में तो वो क्लेंजापिन और लेंजापिन नहीं आएंगे? सारी आ SSRI ये तो जाती एंटी डिप्रेसेंट। सारी आ जाती है एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, मैं टेबल शेयर करती हूँ डिटेल के किस ग्रुप में क्या आता है, मैं बता देती हूँ। लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको सारी का नेम नहीं लेना। मूड स्टेबिलाईजर्स आप इसमें नहीं यूज करें, आप एंटी साइकोटिक्स यूज करें। ठीक है। जब आपने डायग्नोज, जी मैडम। you have the definition of blues, you have the definition of depression, and you have the definition of psychosis. Why? सबकी जो ट्रीटमेंट है वो चेंज है। ब्लूज को आपने बस ऑब्जर्व करना है, CBT, दैट्स इट। और डिप्रेशन में आप एंटी डिप्रेसेंट्स देंगी, ठीक है ना। और साइकोसिस में आप एडमिट करके उसको एंटी साइकोटिक्स देंगी। ठीक है। जी मैडम। आदिया, आपका अपना कोई यहाँ पे मैडम क्वेश्चन? मैंने ना नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने लास्ट एग्जाम में एक बहुत मतलब जो मेरा बुरा स्टेशन हुआ था, इट वाज वन ऑफ दैट स्टेशन। और मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई उसमें, कि मैं थक गई, लेकिन मेरी एग्जामिनर ने ना बिल्कुल आखिरी 2 मिनट से पहले मुझे बताया कि बेबी आईयूडी है। मे भी उसको इस बात पे गुस्सा चढ़ा होगा कि मैंने अर्ली क्यों नहीं पूछा। मतलब कुड मैं बी। पूछती रही कि वो आउटकम क्या था, ये था वो था। मतलब मुझे वो, मैं बार बार एक्लेम्शिया, कोई सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स और इन सारी चीजों पे ज्यादा मेरा फोकस रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बेबी आईयूडी है। उन्होंने एग्जैक्टली बेल बजने के कोई 1 या 2 मिनट पहले मुझे ये मुंह से बोला, और वो बहुत इरिटेटेड बैठी हुई थी। वो कुछ खा रही थी और उनका जैसे अजीब सा बिहेवियर नहीं होता, जिसमें वो देख भी बंदा ऐसे लग रहा होता है कि यार मैं आपको एग्जाम देने के लिए आई हूँ, तो आप प्लीज मेरी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो कर लें। पता नहीं वो मेरी कोई बात सुन भी रही थी कि नहीं सुन रही थी। लेकिन वन ऑफ दैट थिंग कि जो मुझे बहुत बुरी तरह पिंच की थी वो वहां पे यही थी, जो अगेन मैंने फिर आज ये मिस्टेक की, कि जब आपको ये जैसे ब्रेस्ट इंग्रॉज है, ये एक बज वर्ड है कि क्यों इंग्रॉज्ड है। मैंने कभी इसको ऐसे क्रिटिकली नहीं सोचा कि ये भी एक सिम्टम है, आपको इंडिकेशन है कि बच्चे के बारे में पूछें, उधर ही पूछ लें कि क्या आउटकम था। थैंक यू मैडम। एक ये मैडम चीज मेरा मैं भी एक कहती स्टेशन हूँ। था डॉक्टर, मेरा भी एक स्टेशन था और उसमें इन्होंने पोस्टमार्टम साइकोसिस से दिया था और एग्जैक्टली इसी तरह का सिनेरियो था। उसको 1 वीक 10 डेज पोस्टमार्टम थे और उस पेशेंट को जो था वो वुंड इन्फेक्शन भी उन्होंने साथ में डाल दिया था। सीजर हुआ था और पोस्ट हाँ हाँ, सिजेरियन ये भी मुझे लगता है, ये भी था। वुंड इन्फेक्शन साथ में डाल दिया था और उस पेशेंट का भी बच्चा आईयूडी था और वो एडमिटेड पेशेंट थी और उसकी उन्होंने पोस्टमार्टम केयर भी पूछी थी सारी। जो समझ में ये बात तो मुझे आ गई थी सिनेरियो पढ़ के कि पूरी पोस्टमार्टम केयर बतानी है, वुंड की केयर भी बतानी है, सब कुछ बताना है, हिस्ट्री भी लेना है। लेकिन ना आईयूडी तक मैं भी नहीं पहुंच पाई थी और जो था ना वो साइकोसिस भी की भी उन्होंने मुझे हिंट नहीं दी थी। मैं इसको ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन करके आई थी। ओके। तो और मैं तो पोस्टमार्टम एक्लेम्शिया ही समझती जा रही थी कि वो एजिटेटेड है फिर, और वो उसमें तब ये नहीं था कि उसका ये था कि वो अनकंट्रोल्ड वायलेंट बिहेवियर है इस तरह का। तो मुझे लग रहा था कि वो ना बस एक्लेम्शिया में जा रही है, पता नहीं, तब शायद अकल भी बहुत कम थी। बहुत बुरा किया ओके, था मैंने वो केस। इट्स ओके। हम क्योंकि जितने सिनेरियोज करेंगे ना उतना हमारा दिमाग चलेगा। अब ये सिनेरियो इट्स अ मिक्सअप ऑफ 2023 18 अक्टूबर रिकॉल, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है। और एंड इसमें मैंने और एक आई थिंक टोनी का है, या टोनी का ही है मे बी,
उसमें जो है लिथार्जी भी डाली हुई है। और उसमें जो डीडीज है ना, वो जो मैंने अभी डीडीज आपसे डिस्कस किए हैं, इस वजह से मैंने इसमें ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट तो थी खैर। रिकॉल में बेसिकली सिर्फ ये था कि पैरा 2 है, शी हैड अंडरगोन LSES 1 week बैक, नाउ शी हैज प्रेजेंटेड विद लेथार्जी, एजिटेटेड एंड नॉट फीलिंग वेल, दैट्स इट। फिर जब हिस्ट्री पूरी ली तो देन एग्जामिनर ने 3 चीजें डाली, BPH, IUD एंड सुसाइड। वेल मेरा ये स्टेशन वेंट वेल, लेकिन मैंने ये ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट्स डाली, ये सारी चीजें खुद एक साथ कंबाइन की ताकि आप सारी चीजें सोचें। दीज आर द हिंट्स जो जी आपको मैडम, बहुत अच्छा बताएंगे। समझ। देखो अगर ब्रेस्ट हम्म इंगोर्ज्ड है तो अगर वो ब्रेस्ट फीड, पहले तो पूछो इज शी ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी, है ना। पहले तो देखो 6 Bs पोस्टमार्टम में आपको कोई सा भी सिनेरियो मिला है ना, सबसे पहले आपने 6 Bs, फिर आप HOPI पर आओ, ठीक है। 6 Bs में आपको क्लूज मिल जाएगा कि आइदर ये क्या प्रॉब्लम है, ये बेबी से रिलेटेड है या ये मम्मा से रिलेटेड है। जब आप पहले ही बी में सबसे पहले बेबी को रखोगे, बर्थ को रखोगे, बेबी और बर्थ आर टुगेदर, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ही कि बच्चा है। सही है। अगर आपने रोल प्लेयर से भी पूछना है तो आपने पहले ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया। और मैडम इसमें एक पॉइंट ये भी होता है ना, सॉरी डॉक्टर पलवशा, के ना जितने भी पोस्टमार्टम, डॉक्टर हिरा ने ये बात बताई थी कि उनकी बात याद रह गई मुझे कि जो है ना, जितने भी आपके पास पोस्टमार्टम केसेस आते हैं ना, चाहे वो पोस्ट नेटल हो, 1 डे हो, 2 days हो या 1 week, आप सबसे पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि अगर उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं सबसे पहले कि आपका बच्चा आपके पास है, आप उसे दूध पिला रही हैं, और फिर अगर पेशेंट बोले कि हाँ मेरे पास है, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और फिर आगे जाके फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर उसका बच्चा आईयूडी हो गया होता है तो आप उससे एम्पैथी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली आप जब उर्दू में पूछोगे तो आप ऐसे ही पूछोगे कि आपका बच्चा ठीक है, आपका हमल सही गुजरा था, आपका हमल का दौरानिया, आपका बच्चा ठीक है, आप दूध पिला रही हैं। ये एक ही सेंटेंस में 3 चीजें आपकी रूल आउट होगी। और इसमें आप पूछें सबसे पहले कि इज बेबी इज विद मदर, इफ शी ब्रेस्ट फीडिंग, तो उधर ही आपको फिर जो हाँ मैंने मैडम। शुरू में सवाल पूछे हाँ थे, एग्जामिनर आपको अब नहीं एंड तक लेके जाएगी क्योंकि आपने हाँ, क्लिक कर लिया है। बस शुरू में पूछ लिया, क्योंकि हम जितने भी पोस्टमार्टम है उसके टेम्पलेट में बेबी का जो है वो बायोडेटा में आता है साथ में, कि आपको बेबी के बारे में पेशेंट के बायोडेटा के साथ ही पूछ लेना है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेशन से पहले, नेक्स्ट सिनेरियो से पहले मुझे थोड़ी सी चीजें आपको बतानी है। एक मिनट जरा मैं इसको रिमूव। देखो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनको हम सबसे पहले तो, वैसे तो आइडियली जो आप लोग अपना बुकिंग विजिट होता है ना, उस पर आप हम जो है ना पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग के क्वेश्चन होते हैं 2, एक डिप्रेशन के स्क्रीनिंग के क्वेश्चन होते हैं, एक एंजाइटी के होते हैं। डिप्रेशन के 2 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम वूलीज क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। सुनते जाओ बस क्या हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ये देखो ये वूलीज के क्वेश्चन है जो कि आप डिप्रेशन के करते हो 2 क्वेश्चन, और ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं जो हम स्क्रीनिंग के करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आते हैं दोनों में से कोई एक, फिर हम डिप्रेशन को डिटेल में इसके क्वेश्चंस करते हैं जिसको एडिनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्कोर कहते हैं, या फिर पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर 9 के नाम से फॉर्म होता है, उसमें हम क्वेश्चन पूछ पूछ के फिल कर देते हैं। ये आपको याद नहीं करने होते, आपको सिर्फ स्क्रीनिंग के 2 क्वेश्चन अपनी हिस्ट्री के लिए याद करने, इसको छोड़ दो बस। यू शुड नो कि व्हेन स्क्रीनिंग इज पॉजिटिव देन आपको कहाँ मूव करना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर गेट 2 का स्कोर आपका 3 मिल जाता है, फिर गेट 2 को मूव करते हो आप गेट 7 पर फर्दर, और फिर साथ में रेफर कर देते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पर कि वुलीज क्वेश्चन क्या है बेसिकली। डॉक्टर पलवशा, हमें ये आने चाहिए वो जो गैट के सारे क्वेश्चंस हैं? नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये हाँ, हवा में ओके बातें ओके। ना चले ना कि आप बस वुलीज क्वेश्चन पढ़ के चले गए एग्जाम में, जी बोले जी। एंड इफ शी वांट्स टू नो यू आर गोइंग वेरी वेल एंड शी वांट्स टू नो, अच्छा इसको पता भी है कि वुलीज क्वेश्चन। तो ये पहली पॉइंट ये है कि पिछले 1 महीने की हिस्ट्री हमने वुलीज क्वेश्चन में करनी होती है, ठीक है। डब्ल्यू को सीधा कर लो तो एम बनता है और एम से मंथ बनता है, ऐसे याद कर लो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है।
इसमें हमने पूछना होता है कि पिछले 1 महीने में आपको ऐसा लगा कि आप जो है वो बहुत स्लो हो रही हैं, आप नाउमीद हो रही हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आप डाउन फील कर रही हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क दिस अगर रोल प्लेयर वाला आ गया, ठीक है। मैं आपको एक अपना रिकॉर्डिंग भेजूंगी, मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि पिछले 1 महीने में आपको ऐसा लगा कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करती हैं वो काम आपके करने का दिल नहीं कर रहा, या आपको जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। ये 2 क्वेश्चन है। अगर इसमें से तो पेशेंट कोई भी पॉजिटिव बोल देता है, देन हम ईडनबर्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो हम नहीं करते, वो पूरा परफॉर्मा होता है, बस ये स्क्रीनिंग के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ गेट टू। गेट टू इज द स्क्रीनिंग टूल फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। गेट टू होता है 2 वीक्स का, ठीक है। 2 से 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्ते की आपने हिस्ट्री लेनी होती है एंजाइटी की, बस यही है। आप नर्वस, एंशियस या ऑन द एज, आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि आप परेशान हैं, ठीक है, और आप हर काम करने से पहले जो है वो थोड़ा सा एंशियस को उर्दू में देख लेना, यार मुझे नहीं पता, नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरिंग, ऐसा नहीं लग रहा कि आप हर चीज में परेशान हो जाती हैं और हर वक्त आपको परेशानी का आलम रहता है, ठीक है। इसको दोनों क्वेश्चंस को एक एक उर्दू की लाइन बना के रख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अब जो हम आगे चलेंगे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया कि भाई इसका स्कोर इतना है गैट का और ईडनबर्ग का इतना है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंट साइकोसिस में है या डिप्रेशन में, ठीक है। PHQ ये डिप्रेशन की वजह के लिए होता है, इसको कहते हैं पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर, ठीक है। पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन है, इसमें बस ये याद रखो कि जब 10 आपको मिल गया ना पॉइंट, तो डिप्रेशन होगा पेशेंट को मॉडरेट वाला, और हम मॉडरेट डिप्रेशन से ही दवाइयां शुरू करते हैं, माइल्ड तक तो हम वैसे ही टॉकिंग थेरेपी करते हैं। बस इसमें आपने ये देखना है कि 10 से 14 तक का स्कोर मॉडरेट है। जब उन्होंने आपको स्कोर 15 दे दिया, मतलब ये बंदी सीवियर डिप्रेशन की है, फिर तो आप अपनी MDT को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। बस सिर्फ इसको 2-3 बार आपने टेबल को देख लेना है कि अगर सिनेरियो में आपको स्कोर्स दिए हों तो आपको पता हो ये हल्की नौयत का मसला है या फिर सीरियस मसला है, ठीक है लड़कियों, यहाँ तक क्लियर है। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। इफ यू नेम दीज थिंग्स इन योर सिनेरियो कि मैं ये स्क्रीन करूंगी अपनी पेशेंट को, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में चीजें हैं क्या, ठीक है। एंड दिस इज वेरी बेसिक, आनी चाहिए। आगे मूव करूं अब सिनेरियो पर। बताओ। जी डॉक्टर। जी डॉक्टर पलवशा ईडनबर्ग स्कोर नहीं याद करना होता, नहीं ईडनबर्ग स्केल जो होता है। नहीं, लेकिन वो मैडम जरूरत जब मैं नहीं है बाहर आपको करने। तो मैडम जब मैं बाहर आई थी, लेकिन तो देख के तो लड़कियां कह रही थी कि हमसे उन्होंने ईडनबर्ग स्केल पूछा, हमसे उन्होंने ईडनबर्ग स्केल पूछा। यार पूछा तो नहीं है आज तक, लेकिन चलो मैं पिक्चर वो भी इसमें ऐड करके तुम लोगों को ये शेयर कर दूंगी। वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो यार फॉर्म होता है तो लगता है पूरा। मैडम याद हो ही नहीं कोई सकता। याद नहीं करता, ये बने हुए होते हैं। साइकेट्री वाले मोस्टली हाँ कर जी, रहे होते हैं। बने हुए होते हैं। फिर भी मैं हमारी तो वो बस पिक्चर हमने इसका नाम ईडनबर्ग की पिक्चर जो है ना वो शेयर कर दूंगी, देख ले। मतलब उसको कुछ थोड़ा बहुत समराइज करके हम बस कर हाँ, सकते हो थोड़ा सा थोड़ा, कि आ हम जाओ। उसको बता दें कि है क्या, वो बस थोड़ा बता दें अगर पूछें तो वो। इफ पूछें तो ये चीजें आपने इफ के लिए, इफ एंड बट्स के लिए हाँ सेफ इफ है, साइड पे हाँ याद इफ करनी। इट डिपेंड्स कि अगर वो पूछे खुद से तो यस, खैर नॉलेज झाड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। चलें। हु इज नेक्स्ट? Why you people are taking so much time? डॉक्टर मैं करूँ ये वाला? जैनब 1 मिनट रुको, बाकी कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा? 24 वीक्स ऑफ डॉक्टर पलवशा मैं करूँ? डॉक्टर सना। ओके गुड, चलो सना तुम करो, उसके बाद बाकी करेंगे। जी ठीक है। सिमुलेटेड पेशेंट टास्क है। सारा पहले सिनेरियो बोलो, सॉरी वो मैं ना बाहर रख के गई हुई थी, इस वजह से मैं भी आई। Sarah, 28-year-old, Gravida 1 para 0, presented at 24-week pregnancy. She has been referred to you. Midwife
She weak visit. She has history of depression treated with Sertraline, which she stopped as soon as found she was pregnant. ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपकी डॉक्टर हूँ। वालेकुम सलाम। रखती हूँ मैं। वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सारा। जी सारा। अच्छा सारा, मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 28 साल है, आपको 24 हफ्ते हामला हैं और आपको पिछले हफ्ते आपने अपनी नर्स के पास जब आप मुआयने के लिए गई थी तो आपको कुछ परेशानी का मसला लाहिक था, क्या ऐसा ही है? जी डॉक्टर साहब। और आपको ठीक है। अच्छा आयशा, मैं आपको आपके मसले के बारे में बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी ताकि हम आपके मसले के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। क्या आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ तावन करेंगी? ठीक है। ओके। अच्छा सारा, आप मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? डॉक्टर साहब मेरी शादी को 3 साल हो गए। ठीक हो गया। और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। और जैसे कि हमें पता चला है कि आपका पहले एक हमल था, वो हमल ज़ाया हो गया था। वो कितना अर्सा पहले की बात है? नहीं डॉक्टर साहब, जाया नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, ग्रेविडा 2 पैरा 0 लिखा, सॉरी मैंने ग्रेविडा 2 नहीं लिख पड़ा, सॉरी। अच्छा ये आपका पहला हमल है? जी ये मेरा पहला हमल है। ठीक है। आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरी डेट्स ठीक है। वैसे आपका हमल जो है वो मुद्दत के मुताबिक ही है, हाँ ठीक जी। है? हाँ जी। ठीक है। और आपका हमल अभी, आप ये जब आपका हमल हुआ है तो आप हमल चाह रही थी जी डॉक्टर या कोई साहब, हम लोग बड़ा ट्राई कर रहे थे पिछले 1 साल से, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे अब प्रेगनेंसी हो गई है। चलें, अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमल से पहले जैसे कि मैंने आपके नोट्स में देखा है कि आपको मतलब डिप्रेशन का मसला था जिसके लिए आप अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी, हाँ जी। तो आपने वो अद्वियात हमल से पहले छोड़ दी थी? डॉक्टर साहब जी मुझे पता चला था कि ये जो अद्वियात होती हैं ये बच्चे पर बहुत असर करती हैं, तो मैं तो बहुत डर गई थी, तो मैंने फौरन से छोड़ दी थी जैसे ही मेरी पीटी पॉजिटिव आई थी ना। ठीक है। तो आप अपने हमल से पहले अपने जो डॉक्टर हैं उसके पास बाकायदगी से चेकअप के लिए जाती, तो उनसे आपने मशवरा किया था? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी कंट्रोल थी काफी सालों से इसी दवाई पे, तो बस मैंने नहीं दिखाया डॉक्टर अच्छा, को। ठीक है, आपने नहीं दिखाया था। वैसे आप मतलब बिल्कुल उस पे आप बेहतर महसूस कर रही थी और आपको कोई मसला नहीं हो रहा था, जी ठीक जी हो गया। जी। और आपने खुद से ही दवाई ली दी थी। हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप वो कितने मकदार में वो दवाई इस्तेमाल कर रही थी, आपको कुछ याद है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे डोज तो अब तो मैं भूल गई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, पता है मैं पहले बिल्कुल सही थी जब तक दवाई ले रही थी, लेकिन मैंने अपने बेबी की खातिर जो है ना दवाई छोड़ दी। और वहाँ पे मुझे अब आप बात किसी चीज में मजा नहीं आता, मैं बहुत लो फील करती हूँ डॉक्टर साहब। मैंने अपने बेबी के लिए छोड़ी थी और मैंने सोचा था मैं बहुत खुश होंगी, बच्चे के कपड़े लूंगी, खरीदारी करूंगी, लेकिन मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता डॉक्टर साहब, हर वक्त रोना आता रहता है बस। अच्छा सारा, मैं आपकी बात, आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ। आप परेशान मतलब ना हो, मैं आपकी कोशिश करूँगी कि आपके इस मसले में मैं आपकी बेहतर तरीके से मतलब मदद कर सकूँ। तो आपको ये सारा मसला आप मुझे बताएं कि कब से हो रहा है? पिछले 2 महीने से आप इसी तरह ही मतलब लो महसूस कर रही हूँ, आपका हाँ कोई काम जी। करने को? हाँ जी ऐसे ही है, पिछले 2 महीने से कर रही हूँ। तो आपको किसी भी मतलब रोज़मर्रा की किसी भी एक्टिविटी में आपका दिल नहीं लग रहा, या आप नहीं। मतलब रोज़मर्रा के जो मामलात हैं जो पहले जिनमें आपको अच्छा लगता था उनमें आप नहीं कर रही, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ ही भी है? नहीं हो पा रहा मुझसे, बहुत मुझे रोना आता रहता है हर वक्त। तो खुदा ना खास्ता आपका ऐसा तो नहीं दिल करता कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं या किसी और को? नहीं 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 ऐसा नहीं है, बस मेरा दिल नहीं लगता किसी चीज में। मुझे लगा था मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बच्चा इतनी जी, देर बाद हमें मिल रहा है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो फिर बस, लेकिन वो बात नहीं है। ठीक है। ये इस तरह मतलब हो जाता है, जैसे आप प्रेगनेंसी में भी कुछ हार्मोन्स वगैरह का चेंजेस होते हैं, तो आप परेशान ना हो। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता आपको ऐसे तो नहीं लगता कि जैसे आपको पीछे से कोई आवाज़ें आ रही हैं, या मतलब कोई आपको नहीं कोई बात बता नहीं रही है, कोई भी नहीं वगैरह, ऐसा इस नहीं तरह ऐसा का? नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। और वैसे आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक हैं? वो आपके साथ तावन करते हैं, आपके घर वाले आपके साथ?
सब घर में सब लोग? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि माज़रत के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी कोई नशावर अशिया जैसे कोई सिगरेट या तंबाकू किसी तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं डॉक्टर साहब, कभी भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आप फिर मुझे बताएं कि बाकी आपने जो आपका हमल में शुरू में आपने फोलिक एसिड की गोली खाई थी और अपने बच्चे के अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे करवाए थे? हाँ जी सारे कराए थे, शुरू वाला भी कराया था, फिर और 20वें शुरू हफ्ते में पर आपको भी कोई कराया उल्टी था। मतलब वगैरह ज़्यादा तो नहीं होती थी? बस वो जो शुरू में हुई थी, बस पहले हफ्ते ज्यादा और हुई बच्चे थी। की साफ का अल्ट्रासाउंड करवाया था? हाँ जी पिछली बार कराया था, ठीक था बच्चा। ठीक था। चलें, वो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आपके बच्चे के सब कुछ अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में तो किसी को इस तरह का ये ज़हनी किसी बीमारी का, डिप्रेशन का मसला तो नहीं, या किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का मसला? डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को ये वाला मसला था, अम्मी दवाइयों पे रही हैं कुछ अर्सा। ठीक है। और आपको कोई और मसला हो, किसी किस्म की और अद्वियात, शुगर ब्लड प्रेशर का, या कोई और मतलब और ताकत की अद्वियात वगैरह आप इस्तेमाल कर रही हैं, कोई मसला तो बस नहीं है? मैं ताकत की ले रही हूँ, और तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, बस यही है कुछ। किसी मेडिसिन से अच्छा नहीं एलर्जी लग तो रहा नहीं मुझे है? कुछ भी, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। हम्म। ठीक है। आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं? नहीं, एलर्जी नहीं अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखें सारा, मैं आपसे बहुत सी मालूमात बताना चाहती हूँ। आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहती हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, या आप अकेले ही बात करना चाहेंगी? है। डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ हैं लेकिन वो किसी काम गए हैं, आप मुझे ही बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ, अच्छा। अच्छा, चलें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने जैसे आपको बताया कि आपका मसला था डिप्रेशन का ना, उसके लिए आप अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी और वो अपनी अद्वियात मतलब लेना छोड़ दी। अब देखें, उसमें कुछ अद्वियात तो होती हैं जो कि आपने बिल्कुल, आपकी जो परेशानी वो जायज़ थी कि आपको अपने बच्चे के बारे में आपने सोचा कि आपके बच्चे को नुकसान दे सकती हैं। लेकिन कुछ अद्वियात हमें हमें चाहिए कि हम मतलब वो बेहतर होता है कि हम डॉक्टर के मशवरे से ही हम एकदम वो अद्वियात लें। लेकिन इसी वजह से उन अद्वियात के शायद छोड़ने की वजह से, और कुछ हमल की भी कुछ मतलब हार्मोन्स के चेंज, मतलब जो कुछ रतूबतें होती हैं उसके चेंजेस इस तरह के होते हैं कि बाज़ औक़ात हमें ये मसला ज़्यादा हो जाता है। और जैसे आपकी फैमिली में भी थोड़ी बहुत इस चीज़ की हिस्ट्री है, ठीक है? तो इस वजह से ये हो जाता है। ये एक आम मतलब है, बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार होती हैं। मतलब देखें, 100 में से 10 ख़वातीन को इस तरह का मसला होता है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो कि आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें, कि शायद आप मतलब आप बिल्कुल ये ना महसूस करें कि ये सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो हम हमारे पास यहाँ पे माहिर डॉक्टर की टीम मौजूद है जो कि आपको इस सिलसिले में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बातों से पेशेंट्स का इलाज करते हैं, सीबीटी एक थेरेपी होती है जिसमें वो मुख्तलिफ़ तरीके की कुछ बातें और कुछ ज़हनी वर्जिशें होती हैं वो करवाते हैं, ठीक है? मैं उनको पास भी आपको रेफ़र करती हूँ, ठीक है? जी। और उसके अलावा मैं आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजूँगी ताकि आपको वो मज़ीद दोबारा से आपका सारा चेकअप करके और आपको एक ऐसी दवाई शुरू करवाएँ जो कि जिससे आपका भी ये वाला मसला हल हो सके और वो आपके बच्चे के लिए भी महफूज हो। बहुत सी अद्वियात ऐसी होती हैं कि जो अगर हम उनको हमल में इस्तेमाल करें तो वो हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होती हैं, ठीक है? तो उनके डॉक्टर बारे साहब, में जो मैं दवाई ले रही थी सर्ट्रालीन, क्या वो सेफ है? वो उन दवाइयों में से है जो आप कह रही हैं कि ऐसे मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं हमल में भी और हमल के बाद भी? उसके सर्टालिन जो है, जब हम उसमें थोड़ा-सा है कि वो नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कुछ एक और अद्विया होती है जैसे फ्लोक्सीटिन होती है, इसी तरह की मतलब मिलती-जुलती, उसमें वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बच्चे के लिए महफूज होती है, ठीक है? तो मैं आपको उस पे हमारे वो जो डॉक्टर के मशवरे से हम आपको वो शुरू करवाएंगे। और उसको फिर यही कि आपको भी पता है कि जब हम अद्वियात शुरू करवाएंगे तो शुरू में आपको उसके साथ कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि मुंह का खुश्क होना, कब्ज़ हो जाना। लेकिन ये सारे मसले मसाइल वक्त के साथ साथ 2 से 3 हफ्तों के इस्तेमाल के बाद ठीक हो जाएंगे। इससे ये है कि इस चीज़ को भी शो कर रहा है कि मतलब आपकी जो अद्वियात हैं वो बेहतर हैं और आपको मतलब इसका अच्छा आप पे असर आ रहा है, ठीक है? और उसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा, दूसरा ये कि आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी भी बदलना है। आपने कोशिश करनी है कि जिन चीज़ों में आपको खुशी महसूस होती है, जैसे बाहर जाना, शॉपिंग करना या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है, वो करें। आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करें, अपनी किसी दोस्त के साथ अपने आप को वो कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को वो करें ताकि आप अपना इस चीज़ से आप निकल सकें, आप बेहतर महसूस कर सकें, ठीक है? और जो अगर आपको
दूसरा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजूंगी, वो भी आपकी इस सिलसिले में हेल्प करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी अद्वियात हैं वो हम आपको मैं आपको उसके पास उनके पास भेज देती हूँ ताकि वो आपको अद्वियात दें और आप उनको इस्तेमाल कर सकें और उसके बाद आपका जो ये मसला है वो हल हो सके, ठीक है। और बाकी हम आपके जो रूटीन के टेस्ट हैं हमल के से रिलेटेड वो भी हम करते रहेंगे। और इस सिलसिले में अगर बच्चे में अद्वियात से कुछ मसाइल हो सकते हैं उनको भी हम चेक करते रहेंगे बच्चे में और बच्चे के जो बाकायदगी के अल्ट्रासाउंड हैं आगे वाले और जो भी आपके टेस्ट हैं वो भी हम करेंगे। आपको बाकायदगी से चेकअप के लिए आना है और फिर इस तरह आपका हमल मुद्दत तक चलेगा। 36 हफ्तों पे हम बुला के आपका मज़ीद जो आपके आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने कि डिलीवरी आप कहाँ चाहती हैं और उसमें कि आपके साथ किस तरह का जो दर्द रोकने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, आपने अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाना है और आप Can you hear me, Sana? जी जी डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जिन माओं के साथ ये दिमागी मसले होते हैं उनके बच्चे डिलीवरी के बाद उनसे दूर कर दिए जाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? क्या मेरा बच्चा मुझसे ले लिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि हम पहले ही आपको बताएंगे, आप अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं, आप बच्चे का अपने का ख्याल भी रख सकती हैं। बस आपने जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है और अद्वियात अगर आपको कोई भी लगे कि किसी मतलब अद्वियात को कम या ज़्यादा करना है तो उस सिलसिले में आपने डॉक्टर की राय लेनी है, अपने मतलब खुद से कोई भी इस तरह नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने बच्चे का ख्याल भी रख सकती हैं और आप नॉर्मल एक माँ की जैसे एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है वैसे ज़िंदगी गुजार सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको एक किताबचा दिया है जिसमें ये आपके जो भी मसला है डिप्रेशन का इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और मुख्तलिफ टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को बेहतर महसूस करवा सकती हैं, तो वो आप ले लें। और बाकी मैंने आपके डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट भी कर दिया और मज़ीद अगली अपॉइंटमेंट भी आपकी बुक कर लिया है, ठीक है सर? जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी ठीक है। वेरी वेल डन सना। आप मैनेजमेंट कर चुकी थी ऑलमोस्ट सारी, तो आपका टाइम खत्म हो गया था। बस मैंने आपको खुद ही, मैं इंटरप्ट नहीं करती आप लोगों को क्योंकि फ्लो खराब हो जाता है फिर। बहुत अच्छा किया। बस शुरू वाली बात कि पेशेंट का नेम सारा था और यू अगेन आस्क फॉर हर नहीं नेम। नहीं डॉक्टर प्रीमिशा, वैसे मैं पहले इस तरह नहीं करती थी तो मुझे फिर बाद में कुछ लोग मतलब जैसे किसी सीनियर ने कहा था कि ये पेशेंट सेफ्टी में है कि आप एक दफ़ा दोबारा पेशेंट से उसका नाम पूछें ताकि वो आपको कंफर्म हो जाए कि मतलब जो पेशेंट है आपके पास वही है, हाँ, इसलिए तो मैंने। आप वैसे ही पेशेंट को नाम से भी तो बुला सकते हो ना। अस्सलाम वालेकुम सारा, मेरे पास मामले में आपके बारे में ये मालूमात है, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? यही तो होता है जो हम हाँ पहला क्वेश्चन करते हैं, नाम से बुला जी लो। जी, वैसे मैं तो मोस्टली यही क्वेश्चन करती थी तो फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं आपको एक दफ़ा ना पेशेंट का नाम ज़रूर पहले कंफर्म करना है। चलिए मैं इसको भी नहीं है ऐसा इसी इसको तरह ही थोड़ा करूँगी। रीफ्रेम कर लो क्योंकि यू नेवर नो, एग्जामिनर को ऐसा लगे जब आप बोलेंगे मैं आपका नाम जान सकती हूँ, उनको ऐसा लगे कि नाम तो लिखा हुआ है, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग दिस नेम, गौर से नहीं पढ़ा। जी तो इसको सेफ प्ले करो, जी ठीक हो गया। ठीक है? या तो हाँ, आप तो मैडम रोल प्लेयर का तो टेम्पलेट यही होता है ना कि आप जो बेस उसकी जो कंप्लेन होती है उसको रिकन्फर्म करते हैं पूरी बस, बोल के। यस, जी जी डॉक्टर है परविशा, ना? ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ। लेकिन ये ना मुझे एक ही दफ़ा किसी ने कहा मैं फिर इस पे कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा देखो कि अच्छा यार, चले मैं मेरी बंदा बात नाम। सुनो। हर किसी का ना बताने का मतलब ये नहीं है कि वो आप बिल्कुल उसको लिटरल ले लोगे। लॉजिकली सोचो ना, क्यों कि मैंने भी यही समझा जब तुमने मुझसे नाम पूछा कि इसने शायद सही से देखा नहीं है, तो ये एग्जामिनर को भी यही जाएगा। तो इंस्टेड आपको ये करना है तो कंफर्म डिटेल वाला टेम्पलेट यूज करो ना। जी अस्सलाम ठीक वालेकुम, हो मेरा गया। नाम डॉक्टर सना है, मैं देख सकती हूँ कि आपका नाम सारा है और आपका केस मेरे पास है। आपको ये मसला है, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? अब बताओ, इज दिस वन इज अप्रोप्रिएट और दैट वन इज अप्रोप्रिएट, जिससे मिस नहीं मुझे तो मैसेज खुद ही जा यही सकता वाला है। अच्छा लगता है कि जैसे आप पेशेंट को आप वैसे भी अच्छा लगता है ना कि जैसे आप पेशेंट को उसके नाम से बुलाते हैं तो एक आपकी फर्स्ट ही रेपो बन जाती है कि डॉक्टर को आपका नाम पता है। एग्जैक्टली, गॉट इट। तो जो भी आपको कोई टिप देता है ना, उसको थोड़ा सा देखा करो कि उसमें लॉजिक क्या है, फिर जी आप जी अपना उसमें वो कर दिया एज इट इज। किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो, मेरी बातें अगर सेंस नहीं कर रही तो डोंट फॉलो मी।
ठीक है ना। नहीं हर नहीं, पास आपकी वो कैंडिडेट बात मैं ये सोच रही थी कि पेशेंट भी आपका कंफर्टेबल फील करता है जब हम रूटीन में भी पेशेंट को बुलाते ऑल हैं ना, उसका ऑल नाम लेके। ऑल आई वांट टू से इज के देखो, जो लोग पास हो चुके होते हैं ना, हम भी आपके आपके स्टेज पे ऐसे ही थे कि हर पास कैंडिडेट की हर स्टेटमेंट को हम सही समझते थे, ऐसा नहीं। हम जी भी जी जो पास होके आए ना, हम भी मिस्टेक्स हम भी करके आए हैं, पर कम किए हैं बस। ठीक है ना। जी। चलें, आ जाते हैं आपके फीडबैक पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने, बहुत अच्छा। आपने जो जो इस स्टेशन की रिक्वायरमेंट है ना, आपने वो सारे जो डोमेन्स थे वो आपने पूरे किए। पहला आपने कंफर्म करके फिर आपने उनको बोला कि मैं देख सकती हूँ ये मसला, आपको ये मसला कब से हुआ है, अच्छा ठीक है। इसके बाद फिर आपने उनसे सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट, इसमें ज्यादातर सेफ्टी के पॉइंट्स आ रहे होते हैं और एम्पैथी, ये दो जो है ना मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इस पेशेंट की, साइकेट्री के पेशेंट की, एम्पैथी एंड द नंबर टू इज के पेशेंट सेफ्टी। अब इसमें सेफ्टी क्या क्या था, आपने फौरन से उससे रेड फ्लैग साइंस पूछ लिए, देयर एंड देन आपको पता चल गया मैंने इसको एडमिट करना है, मैंने इसको इंटरवेंशन पर डालना है या नहीं। ठीक है, आपने वो बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर आपने उसकी सपोर्ट पूछी। ठीक है, सपोर्ट में आप सिर्फ हस्बैंड का पूछ रही हो, वो आपने पूछा, घर वालों का पूछा। एक चीज इसमें और ऐड कर लो कि आप पूछो कि आपके घर वाले या आपके हस्बैंड जिसके साथ भी वो रहती है, जैसे मैंने बताया मैं इन लॉज के पास रहती हूँ और हस्बैंड भी मतलब मेरा बहुत सपोर्ट है। अच्छा, आपके हस्बैंड को और आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को पता है कि आप इस मसले से दो चार हैं, आप इसमें से गुजर रही हैं? दिस इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, जी। इट इज वन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, आइदर दे आर अवेयर और नॉट। ठीक, फिर काउंसलिंग में सारी चीजें आ जाती हैं। वैसे तो ऐसे पेशेंट की फैमिली के साथ काउंसलिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने उसको सारी चीजें उससे, अच्छा सर्ट्रालीन उसने छोड़ दी। आपने बोला आपने, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपको, उस वक्त बच्चे का था, आपने छोड़ दी। फिर जो है क्या कहते हैं, एक शुरू में आपने मुझे एम्पैथी की, लेकिन एंड में फिर बीच में भी जब मैं बिल्कुल रोने वाला लहजा बना के मैंने बोला था कि नहीं डॉक्टर साहब, वहां आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, थोड़ा सा एम्पैथी। आप ना ड्रग हिस्ट्री एलर्जी पर आ गई थी तब ना। तो जब जब पेशेंट इस तरीके से जवाब देगा ना, इस तरीके से बोलेगा कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरा दिल करता है मैं कुछ भी ना करूं, मैं पड़ी रहूं बस, तो उसको देयर एंड देन एड्रेस करना है, उस बात को फौरन एम्पथाइज करके आगे अपना क्वेश्चन फिर करना है। ठीक है, दूसरी चीज जी मुझे ये बतानी थी। फिर आ जाते हैं आपकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छे से मैनेज की, एमडीटी को आपने इन्वॉल्व किया। आपने बोला कि टॉकिंग थेरेपी से भी ये चीज़ ठीक हो जाती है और दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। अब उसमें ना आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि मैं जो दवाई ले रही थी इज इट सेफ और नॉट। इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आपको ड्रग्स पढ़नी पड़ेगी। सर्ट्रालीन इज सेफ, she can restart, we can consider restarting her sertraline in liaison with the MDT डिस्कशन। सर्ट्रालीन का सिर्फ थोड़ा सा है कि वो बच्चे पर, एक तो ये कि न्यूनेटल अडेप्टेशन हो जाती है, वो आपने थोड़ा सा बताना था कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चे को छोटी नोयत के थोड़े से झटके होते हैं, क्योंकि आप माँ के खून में ये दवा होती है तो बच्चे में भी जाती है। इसी तरीके से जब आप दूध पिलाती हैं तो दूध से भी जाती है, तो बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। एज सच इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ये आपको हाँ बताना था। जी। फिर आपने लेकिन बोला कि सर्ट्रालीन नहीं जी, सर्ट्रालीन तो निकल गई लिस्ट से, फ्लुक्सिटाइन आ गई, जबकि फ्लुक्सिटाइन से भी न्यूनेटल अडेप्टेशन सिंड्रोम होता है। तो जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स है ना, ये बच्चे पे तो अफेक्ट करती ही करती। मुझे कुछ मेरे हाई दिमाग में दोनों नोयत की घूमी हैं, हुई कुछ थी। जो है वो लो रिस्क है। ठीक है, जैसे आपकी वो आ गई सोडियम वैल्पोएट आ गई, वो तो वैसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो तो यूज ही नहीं करनी। लिथियम आ गई, अगर पेशेंट लिथियम ले रही होती तो फिर आपको पेशेंट को बताना था कि क्या क्या मसला हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपने पेशेंट की करंट जो प्रेगनेंसी थी उसको भी आपने पिछला सारा हिस्ट्री जल्दी से वो भी ले ली कि अब तक तो कोई मसला नहीं हुआ, और आगे कैसे लेके चलोगी वो भी आपने बिल्कुल सही किया। आपके हम बच्चे को मॉनिटर करेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे, आपको ऐसे से लेके चलेंगे। इसमें एक चीज ऐड कर लो जो गाइडलाइन की है, 32 वीक्स पे ना एमडीटी के साथ मीटिंग होती है इस पेशेंट की, साइकेट्री वाले पेशेंट की।
साइकेट्रिक जो जी ठीक है। डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है, बैठा जाता है और फिर सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस होती हैं, ठीक है, एक वो होती है। बाकी 36 पर तो मोड ऑफ डिलीवरी से रिगार्डिंग वो होता ही होता है। देन पोस्टमार्टम में भी आपने सारी चीजें बता दी, और पोस्टमार्टम में आपको मॉनिटर करेंगे, आपके बच्चे को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम वाले टाइम में भी जो है माँ को रिस्क होता है कि दोबारा से उसको डिजीज हो सकती है। अब इसमें जो फीटल कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बतानी होती है। मदर वाली, मदर को देखो जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स है ना कुछ उनका मदर पे इफेक्ट होता ही होता है। आपने वो जो उसकी कॉन्स्टिपेशन और वो सारी चीजें बता दी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, क्या था मेरे दिमाग से, फौरन से स्किप हो गया, मम्मा को क्या होता है। वो विड्रॉ, वो तो अगर छोड़ेंगे तो वो नहीं नहीं विड्रॉल नहीं का है ना, रिलैप्स, रिलैप्स, लैप्स। रिलैप्स। मम्मा को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में रिलैप्स का रिस्क होता है। अगर कंट्रोल भी रही है डिजीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम में हार्मोनल चेंजेस शफल होने की वजह से मम्मा को रिलैप्स का रिस्क होता है, ठीक है। तो जी उसके लिए भी हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और दोबारा से एमडीटी की असेसमेंट होती है इनकी। फिर पेशेंट ने आपसे एक क्वेश्चन किया, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। ओवरऑल फिर आपने क्लोज कर दिया पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। लेकिन उससे पहले भी आप एंड में पूछ लें, सारा आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है, कुछ ऐसी चीज जो मैंने ना बताई हो लेकिन आप पूछना चाह रही हो, प्लीज पूछ लें मुझसे। फिर उसके बाद आप PIL दें, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर पलवसा, ये जो आपने रिलैप्स वाला, वैसे मैंने तो अपनी तरफ से इसको इस तरह ही कंटिन्यू किया था कि मतलब मैं उसको मेडिसिन बंद ही नहीं करवा रही थी। मैं से कह रही थी कि आपने मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी और आफ्टरवर्ड भी लेती रहना है। तो वैसे हम उसको ये कह सकते हैं कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो फिर हम दोबारा से आपको डॉक्टर से कहेंगे कि देखो वो आपको आगे असेसमेंट तो होनी होती है, और वो ताकि और फिर डिजीज, आपकी कम या ज्यादा अगर करनी हो तो उसके हाँ बारे हाँ, में आपको बता। वैसे तो डोज ठीक। बढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, वैसे डोज जी नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता ना, वो जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं वो असेस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिपेंड अपॉन पेशेंट की कंडीशन आप थ्रू आउट उसको स्क्रीन करते रहते हो रेड फ्लैग साइन से, और आप गाइड करते हो पेशेंट को। इसमें आपने स्क्रीन तो कर लिया, साथ ही मुझे अभी याद आया, आप गाइड भी करेंगी सारा। अगर पूरी प्रेगनेंसी में आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपको, इसको आप रेड खुदा फ्लैग न साइन। खास्ता आपका अपनी जान लेने का जो है वो ऐसी थॉट्स आ रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जो बाकी किसी को नहीं आ रही, हेलुसिनेशन को हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आपने फौरन से फौरन देर किए बिना हमारे पास आना है, ठीक है। ठीक हो गया। ये भी हाँ, ये एडवाइस में रेड आ फ्लैग जाए। था, वो था कि आपने बताना है एंड पे, वो तो जब मैंने ओवरऑल FTI के साथ। फॉर मी सना यू हैव पास दिस स्टेशन, लेकिन ये कुछ चीजें थी जो मैंने ऐड की हैं, अगर ये भी ऐड कर दोगे तो फिर 100% है कि तुम लोग ये वाला जो सिनेरियो है, स्टेशन है, गलत कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर फिर एंड इसकी पे PI के डिमांड साथ तुम डॉक्टर लोग को परमिशन पता बता चल दें। जाए कि व्हाट दिस स्टेशन रिक्वायर्स, ठीक है। ठीक हो गया। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है डॉक्टर कलविशा, आपके बताने से मुझे काफ़ी चीज़ें वो मतलब जो मतलब माइंड में थी लेकिन मतलब बंदा स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाता ना। डॉक्टर पलवशा, मुझे मेडिसिन से रिलेटेड हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैंने नोट्स भी बनाए थे अपने, लेकिन ना फिर भी जो है ना वो मुझे सही तरह से कोई भी सोर्स ऐसी नहीं मिली जहां से मैं बिल्कुल 100% मुझे वो हो कंफर्मेशन श्योरिटी कि हाँ ये एंटीसाइकोटिक्स हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, और ये इसके साइड इफेक्ट हैं, ये देनी है ये नहीं देनी है। कंफ्यूजन रहती है मुझे, मेरे पास मतलब मैंने बनाए थे नोट्स, लेकिन उसमें भी लिथियम का तो चले सब चीज क्लियर है, लिथियम का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये सर्टैलन। चलो कौन कर रहा है? ये मैं करूँ डॉक्टर मैं मैं करूँ क्या? ये वाला? करूं डॉक्टर? ठीक है, आप में से एक स्ट्रक्चर डिस्कशन करेगा, एक रोल प्लेयर करेगा, ठीक है। कौन ओके। पहले कर रहा है और क्या कर रहा है बता दो जल्दी से। डॉक्टर केस दिखाइए डॉक्टर ये पलवशा। स्क्रीन शेयर हो रही है, तुम लोग को नहीं दिख रही? जी जी दिख हाँ, रही है, देख लें आप डॉक्टर अगर आप, हाँ, जैसा आपके इंस्ट्रक्टर या रोल प्लेयर जो भी। in bipolar disorder type 1 and is on lithium. चलो She is जैनब planning. तुम इसको रोल प्लेयर करो, एंड आसिया यू विल डू इट स्ट्रक्चर डिस्कशन, ठीक है ओके। मैडम। ठीक है। पहले मेरा रोल प्लेयर जो जैनब होगा। आप करो, हाँ पहले आप करो, जी जी। रीड अच्छा इट मतलब लाउड। मैं, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं पीछे 4 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम। वो डॉक्टर साहब, मेरा नाम अच्छा, एमा है। अच्छा एमा, आप 30 साल की हैं और आपको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है जी और डॉक्टर अभी आप साहब। जो है प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं, तो हाँ इसलिए जी। आप जो है वो हमारे पास आई हैं, ऐसा ही हाँ है? जी। हाँ जी। हाँ जी। ओके। सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करूँगी कि आपने सोचा कि आप हमल होने से पहले आप हमारे पास आई हैं। ये अच्छी बात है कि माँ और बच्चा जो है वो एक सेफ तरीके से एक सेफ तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करे। अच्छा एमा, मुझे अपनी बीमारी के बारे में डिटेल से बताइए कि कब से आपको ये बीमारी है? डॉक्टर साहब, ये मुझे तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं। इन 5-6 सालों से आप शादी से पहले से लिथियम है। ले रही जी हैं? जी, शादी से पहले से है। शादी को कितना अर्सा हुआ है आपके? मेरी शादी को 2.5 साल होने वाले हैं। ओके, ओके। अच्छा, अभी ये कितने अच्छा डॉक्टर सॉरी, ये आपने ग्रेविडा 1 लिखा हुआ है और पैरा 0 लिखा हुआ है और प्री और प्रेगनेंसी भी सॉरी लिखा हुआ है, सॉरी, तो नो नो नो, प्रेग्नेंट गलती हो गई है। ये पहले मैं इसको प्रेग्नेंट कर रही ये थी। इसको अच्छा, इसको ये काट देते हैं। प्री प्रेगनेंसी है ना? हाँ जी। हाँ जी, इसको हम काटेंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, 5 सालों से आप ये लिथियम की दवा विनीता, ले रही हैं? आप स्क्रीन पे मत लिखो प्लीज, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसको रेज कैसे करते हैं। चलें जैनब। जी, जी। एमा, आप मुझे बताएँ कि पिछले 5 सालों से आप यही दवा ले रही हैं और कितनी मिकदार में ले रही हैं? डॉक्टर साहब, मिकदार तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डॉक्टर ने बढ़ाई थी। पहले उन्होंने मुझे दूसरी दवाइयाँ दी थी, उनसे मेरी जो है ना मसला ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे इस दवाई पे डाला एंड में ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब मुझे बाकायदगी कोई से लेती मसला हैं नहीं। इसको और इससे हाँ ठीक जी। हैं? हाँ जी, मैं बाकायदगी से लेती हूँ। अच्छा, अभी आपने आखिरी बार अपने डॉक्टर को कब चेक करवाया था? डॉक्टर साहब, अभी तो मैं पहले आपके पास आई हूँ। वैसे तो मैंने उनको कोई 3 महीने पहले दिखाया था। उन्होंने बोला था ठीक है, यही डोज लेती रहो, तुम सही हो बिल्कुल, तो उन्होंने बस कहा था कि छोड़ना आप मत। प्रेगनेंसी कर सकती हैं? डॉक्टर साहब, मैंने उनसे पूछा नहीं था उस वक्त। अच्छा, एमा, चूँकि हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी आपकी बीमारी के बारे में, ठीक है? जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप कैसा महसूस करती हैं? आपको लगता है कि आप रूटीन की चीज़ों को एन्जॉय करती हैं हाँ डॉक्टर या साहब, अब जब से मैंने ये दवाई ली है ना, मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आपको भूख वगैरह सही लगती है, नींद सही आती है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं होती आप? नहीं नहीं, नींद भी अब बिल्कुल, पहले बहुत मसला रहता था ना, मुझे मैं खाती थी ना, मुझे नींद आती थी। बस अजीब सा, कभी कैसा मूड हो जाता था, कभी कैसा मूड हो जाता था। अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई मसला नहीं मुझे। अच्छा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी आपने आपको खुदा ना खास्ता नुकसान पहुँचाने का सोचा हो आपने या कोई ऐसी नहीं फीलिंग तो कभी नहीं आई आपको? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको ये होता है कि आवाज़ें महसूस होती हैं, कुछ दिखाई देता है जो कि बाकी लोगों को नहीं होता। ऐसा नहीं तो नहीं आपको नहीं होता फिर? नहीं, पहले होता था, अब नहीं होता। बस अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस डॉक्टर, मुझे ना घ प्रेगनेंसी घर में आप करने की मैं प्लान करी थी, तो मैंने सोचा मैं जाऊं डॉक्टर के पास। क्योंकि मैंने ना इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये जो मैं दवा ले रही हूँ ना, ये दवा मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बच्चे में नुक्स करा देती है। जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अम्मा। मैं आपसे कुछ सवालात पूछ लूँ, फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या घर पे सब ठीक है? आपके शौहर, घर वाले आपके साथ ठीक हैं? है। हाँ जी। इसके अलावा कोई आपको और कोई बीमारी या किसी बीमारी के लिए आप खास किस्म की कोई दवा ले रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, बस मुझे थोड़ा सा सीजनल वो अस्थमा हो जाता है, बस उस वक्त मैं ले लेती हूँ इनहेलर, अदरवाइज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गुड। अच्छा, आपकी जो घर में यानी बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें किसी को खुदा न खास्ता ये मेंटल इलनेस या कोई ज़हनी कोई बीमारी तो नहीं है? या उनमें से कोई सब दवा लेता हो मेरी किसी मेरी बीमारी की? मेरी एक बहन को भी है ये मसला, वो भी दवाइयों पर है। वो ठीक है? हाँ, वो भी यही इसी दवाई पर है बिल्कुल, यही ले रही है। अच्छा। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताना चाहती हो?
नहीं डॉक्टर, बस मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि देखिए इतने सालों से मैं ये बीमारी से शिकार हूँ और अब जाके कुछ अरसे से मैं ठीक हुई हूँ, और मैं इस दवा को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये दवा बच्चे के लिए ठीक हम्म, नहीं है। अब मैं बच्चे के लिए भी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, और मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मतलब दोबारा मेरे साथ मैं वो सब चीजें नहीं फेस करना चाहती जो मैं पहले कर रही थी। मैं बहुत बिल्कुल, परेशान मैं हूँ, क्या आपकी करूँ। परेशानी समझ सकती हूँ। अच्छा देखिए एम्मा, जैसे कि आपके अभी लिथियम पे हैं और ये दवा आप काफ़ी टाइम से ले रही हैं और इस पे आप सेट हैं। जी हम जो है आपके जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करेंगे ठीक है। और उनके बाहमी मशवरे से आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं। प्रेगनेंसी से पहले हम आपको फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देंगे और कुछ वैक्सीनेशन जैसे रूबेला वगैरह होती है, हाँ जी। उसके लिए हम आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है? शुरू के ठीक 3 महीने में आप फॉलिक एसिड लेंगी हमल से पहले और हमल के शुरू के 3 महीने में भी आप लेंगी। है। अच्छा, अच्छा। आपका जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपके जो है वो इलाज एक माहिर डॉक्टर की टीम करेगी, जिसमें मैं एज़ ऑब्स्टेट्रिशियन आपके साथ होंगी, सीनियर मिडवाइफ होंगी, आपके साइकियाट्रिक डॉक्टर होंगे और स्पेशलिस्ट नर्स होंगी। ये सब आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी जो है वो केयर करेंगे। शुरू के महीनों में आप अच्छा जैसे कि आप ये लिथियम ले रही हैं, लिथियम जो है वो आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं, ये सेफ है। लेकिन उससे ये है कि बच्चे की खुदा न खास्ता दिल पे असरअंदाज हो सकती है और दिल की बीमारी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो है, लेकिन इसका जो फ़ायदा माँ के लिए है और जिस पे वो स्टेबल है, वो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये कंटिन्यू करेंगी, लेकिन डॉक्टर के बाहमी मशवरे से हम आपके जो है रूटीन के टेस्ट करवाते रहेंगे और आपके ये लेवल चेक करते रहेंगे। जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो शुरू के महीनों में हम आपके जो रूटीन के खून के टेस्ट होते हैं, वायरोलॉजी होती है, आरबीएस, ये जो रूटीन के टेस्ट हैं वो करवाएँगे और आपका डेटिंग स्कैन करवाएँगे। उसके बाद जो है आप हर महीने हमारे पास बाकायदगी से चेकअप करवाती रहेंगी। अच्छा, जैसे कि आप लिथियम पर हैं, तो शुरू के हर 4 हफ्ते के बाद हम आपका लिथियम का लेवल देखेंगे कि खुदा न खास्ता आया ये इसकी जो है वो रेंज कितनी है और ये इसकी जो है वो आपके बच्चे पर असरअंदाज तो नहीं हो सकती। अच्छा हमल के 20 से 21 हफ्ते के दरमियान हम एक बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे में बनावट में कोई नुक्स तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो है वो क्योंकि आप ये दवा ले रही हैं, तो ऐसी सूरत में जो है दिल की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। हम कार्डियक एनोमली ज़रूर करवाएँगे और इसके साथ फीटल इको भी करवाएँगे, जिसमें बच्चे के दिल का मुआयना किया जाएगा, उसको फीटल ठीक। इको कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अम्मा? हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ आ रही है। डॉक्टर साहब, कितने अच्छा। चांसेस हैं कि मैं अगर ये दवाई लेती रहूं तो मेरे बच्चे में कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये मसला होगा दिल का। हाँ, एम्मा एग्ज़ैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। वेल कंट्रोल और मॉनिटरिंग के साथ जो है ये रिस्क जो है हम कम कर सकते हैं। ठीक है। आपने जो है हर 4 हफ्ते के बाद हम जो है लिथियम का लेवल करवाएँगे 36 हफ्तों तक ना, और 36 हफ्ते के बाद हर हफ्ते हम आपके इस दवाई की मिकदार का लेवल चेक करते रहेंगे। ठीक क्या है इसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ठीक अच्छा जब आपको प्रेगनेंसी हमल के दौरान आपको आयरन, कैल्शियम और बाकी जो दवाइयाँ होती हैं हमल की वो दी जाएँगी और आप रूटीन में हमारे पास चेकअप करवाती रहेंगी। उसके बाद ये कि 24 से 26 हफ्तों के बाद हम बच्चे की ग्रोथ के लिए हर 2 से 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएँगे, देखेंगे क्या आया। बच्चा जो है अपनी ग्रोथ के हिसाब से हमल के हिसाब से सही ग्रोथ कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा, तो हम मुद्दत पे आपकी डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। इससे पहले ये है कि 32 हफ्तों पे जो माहिर डॉक्टर की टीम है, वो उनकी एक मीटिंग होगी, जिसमें आपकी डोज़ के बारे में, आपकी दवा के बारे में और जो है आपके प्रेगनेंसी के मोड के बारे में, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन 32 से 36 हफ्ते पर हम ये एक मीटिंग अरेंज करते हैं। सब कुछ ठीक होगा तो आप जो है 4-4 हफ्ते पे ही लेवल करवाएँगे और उसके बाद 1 हर हफ्ते। अच्छा मुद्दत पे आपकी जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के दौरान आपके और आपके बच्चे के लिए हम रूटीन में कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे। आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी और जो है वो अ, अच्छा ये इमाम मुझे आपको बताना है कि जब आपका यानी कि लेबर शुरू हो जाएगा यानी कि आपके इधर तो आपकी ये जो दवा है हम बंद कर देंगे, ठीक है? ठीक। अच्छा आप पे बच्चे के उसके बाद डिलीवरी के दौरान जो है कौन को यानी कि एक
खून कम करने के लिए जो हम दवा देते हैं, यानी कि जिसमें एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं, वो की जाएगी। और डिलीवरी के बाद जो है आपको माने हमल के या कंट्रासेप्शन की तरीके बताए जाएंगे। अच्छा, डिलीवरी के बाद आपके 12 घंटे के बाद हम आपका लिथियम का लेवल दोबारा करवाएंगे, और फिर आपके जो साइकेट्रिस्ट यानी कि डॉक्टर होंगे, उनकी बात में मशवरे से हम आपकी दवा दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, जो है वो आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम बच्चे में जो यानी कि दूध में लिथियम की मिकदार जो होती है कम होती है, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होती है। लेकिन हम ये भी आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके मशवरे से आपके ये शुरू करेंगे। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो या डिहाइड्रेशन हो या कोई ऐसी अलामात हो, तो ऐसी सूरत में जो है हम उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। और बाकी ये कि ये मालूमाती किताबचा है, आप इसके बारे में जो कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ये दवाइयाँ जो हम लेते हैं, बच्चे जो हैं वो इस पर एडिक्टेड हो जाते हैं। क्या मेरा बच्चा लिथियम से एडिक्टेड हो सकता है? उसको भी जी, देने की जरूरत पड़ सकती है? इसके चांसेस होते हैं, इसलिए कि जो माँ पूरे हमल में ये दवा लेती है तो ज़्यादा बच्चे के ऊपर इसके असरात होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे की भी, और आपके अंदर खून लिथियम की मिकदार भी देखते रहते हैं। अ, ये जो आप उसे कहते हैं, इसे हम अपनी ज़बान में विड्रॉल इफेक्ट कहते हैं। ये इसके चांसेस होते हैं, इसे मुझे याद नहीं कितने होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं लिथियम ना लूं, मैं छोड़ दूं, तो क्या मैं अभी अभी छोड़ सकती हूँ? देखिए, आप ये दवा खुद से नहीं छोड़ सकती। आप दवा पहले आप अपने जो डॉक्टर है उनसे मशवरा करें, क्योंकि लिथियम को एकदम से छोड़ना ये माँ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जो आपकी अलामत आप कह रही हैं कि पिछले 5 सालों से आप ये दवा ले रही हैं और इस पे आप सेट है, तो जी। फिर ऐसे में रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो खुदा न खास्ता वो आपकी और आपकी सेहत के लिए मज़रअंदाज हो सकते हैं। तो इसलिए आपने ये एकदम से नहीं छोड़नी होती है। ठीक, सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, ऑलमोस्ट आपने टाइम पे कर लिया था, लेकिन आई डिडंट स्टॉप यू ताकि आप पूरा इसको एंड तक लेके जाओ। जैनब, बहुत अच्छा किया आपने। आप स्टार्ट किया उसकी हिस्ट्री के साथ। इसमें बस एक चीज आपने ऐड करनी है हिस्ट्री में, कि आपको कभी अस्पताल में दाखिल हुई हैं आप अपने इस मसले की वजह से। ठीक है? हाँ, ओके। ये जहाँ पे ओके, आप ओके। सारी, जिस जिस पेशेंट को ऑलरेडी मसला है ना, ऑलरेडी द जी, 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 पेशेंट जी। इज डायग्नोज्ड, तो उसमें हाँ, आपने हॉस्पिटल एडमिशंस की और करंट स्टेटस, अभी उसकी डिजीज कंट्रोल है या नहीं। अभी जो कंट्रोल है वो तो आपने चीज पूछ ली, रेड फ्लैग्स पूछकर, बट कोई प्रीवियस ओके। हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, तो वो आपको चीज बताएगी कि सीवियर किस्म की इसकी डिजीज है। और रिलैप्स, जितनी जिसकी प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री होती है ना, तो उसमें रिलैप्स का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हमें उसको विजिलेंटली मॉनिटर करना। ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा इसको ओके। करा हुआ है। आपने पेशेंट के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर दिए, और फिर जो है लिथियम के बारे में आपने सारी चीजें उसको बता दी कि ये बच्चे पर इस तरीके से, वो जो इंसिडेंस आपको नहीं आ रहा था वो 1 in 1000 है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि बच्चे में ये रिस्क जाता है लेकिन बहुत स्मॉल है, लेकिन मम्मा को ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर ये मम्मा की डिजीज अगर वर्स हो गई दवाई ना लेने की वजह से, तो ये हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स, रिस्क, मम्मा के रिस्क अगेंस्ट द बेबी के रिस्क बैलेंस करने पड़ते हैं। ठीक है? इसको आपने उर्दू में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उसके बाद फिर आपने इसकी मॉनिटरिंग, एमडीटी को इन्वॉल्व किया, आपने इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से सारी बता दी। देन आप उसका लेबर में मॉनिटरिंग भी आपने बता दी। ब्रेस्ट, जो जो क्वेश्चंस मुझे पूछने थे जो कि की में हो सकते हैं, अगर रोल प्लेयर नहीं बताता तो वो एग्जामिनर को बोला जाता है कि इफ नॉट बीइंग टोल्ड देन आस्क दिस। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एग्जामिनर ने समझो आपसे सारी पूछ ली। ब्रेस्ट फीडिंग का अगर अभी स्टॉप मैं करूं तो कैसे, फिर मैं कर लूं क्या स्टॉप, उसका आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आपने बेबी को भी मॉनिटर किया बाय एनोमली स्कैन, बाय एको, आपने मम्मा को भी मॉनिटर किया।
बाय द उसका क्या कहते हैं लिथियम के लेवल्स एंड ऑल, वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई। लेबर की भी मॉनिटरिंग आपने बहुत अच्छी बताई। तो ओवरऑल आपने स्टेशन बहुत अच्छा बताया, आपने अच्छा प्रिपेयर किया। पास। थैंक यू डॉक्टर। अच्छे मैं एक नंबर बात से पूछनी पास। थी हाँ कि जी। लिथियम में जो है वो हम ब्रेस्ट फीडिंग इसी तरह हम बताएंगे ना कि आप करवा इस पे सकती हैं मैं लेकिन आ मॉनिटरिंग के रही साथ। हूँ, मैं भूल गई, असल में मैंने लिखी नहीं तुम्हारी चीजें। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वैसे लिथियम में, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो दवा लेकिन लेने से हाँ, पहले ये जो है ना फीड करवा सकती है अपने बेबी को। मैडम मैं लिथियम को लेबर से 12 आवर्स पहले स्टॉप कर देते हैं ना? यस। जी जी मैंने बताया है कि 12 बार पहले इसको स्टॉप करके हाँ। और फिर हाँ, आपने नहीं, नहीं, आफ्टर मैं डिलीवरी आपको नहीं 12 कह बार रही, जो मैंने आपका सुना नहीं था। और मैडम एक और बात मैं पूछना चाही थी कि ना जो है वो लिथियम जैसे 6 to 12 वीक्स जो होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है, और ये पेशेंट को मेंशन किया इन्होंने कि वेल कंट्रोल्ड है और टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अब मैं अगर हम इसको, क्योंकि हम प्यूरी प्रेगनेंसी इसको रेफर करेंगे इसके साइकेट्रिस्ट से, और उससे हम एमडीटी अरेंज करेंगे कि आप वो उससे रिव्यू लेके आए कि लिथियम कितनी सेफ है नहीं है। तो अगर इसको ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड साइकेट्रिस्ट जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे शिफ्ट ओवर कर देता है, और वो फिर पेशेंट उस मेडिसिन पे प्रेगनेंसी अपनी कंटिन्यू करना चाहती है, तो हम उस तरह से भी काउंसलिंग कर सकते हैं ना? यस, दिस इज अनदर ऑप्शन। आप पेशेंट को बताओगे, यू विल जस्ट इन्फॉर्म कि कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप लिथियम अभी स्टॉप, अगर वो प्रेग्नेंट होके आती है, या देखो प्री प्रेगनेंसी तो आप इतनी जल्दी तो नहीं ना उसकी स्टॉप करवाओगे, और फौरन से तो स्टॉप करते ही नहीं है। 4 वीक्स का टाइम होता है, ठीक है ना। हमने 1 महीने में स्टॉप करनी होती है स्लो स्लो, वरना पेशेंट को फिर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और वो उसको रिलैप्स भी हो सकता है। तो ये हमने नहीं करना, हम सिर्फ उसको ये इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके जो डॉक्टर हैं वो जो है आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से स्लो स्लो, अगर आप ये डिसाइड करती हैं कि आप लिथियम को स्टॉप करें, तो फिर एकदम आप खुद से स्टॉप नहीं करेंगी, आपको मैं आपके डॉक्टर के पास भेजूंगी। वो 4 हफ्ते में डोज कम कर करके आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो लिथियम स्टॉप कराएंगे। एक ऑप्शन ये है कि शुरू के जो 3 महीने हैं जिसमें बच्चा ज्यादा मुतासिर होता है लिथियम से, एक ऑप्शन ये है कि वो आपको कोई और सेफ जो है वो मेडिसिन पे डाल सकते हैं, जिससे आपके सिम्टम कंट्रोल हो और आपकी डिजीज जो है वो वापस से आपको सिम्टम ना आए, और फिर 3 महीने जैसे ही गुजर जाए फिर वो वापस से आपको लिथियम पे डाल दें और आपकी फिर लिथियम वाली मॉनिटरिंग हो। दूसरा ऑप्शन ये जी। है कि अगर उस पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल नहीं होते ऑल्टरनेटिव ड्रग से, देन उसको लिथियम पे मजबूरन पेशेंट को डालना पड़ेगा, और फिर लिथियम वाली ही मॉनिटरिंग होगी। ठीक है। हाँ ठीक। मैडम, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा से जुमलों में तीनों बातें पेशेंट को इस वाले स्पेसिफिक सिनेरियो में, क्योंकि हमें पेशेंट हमारे पास अभी प्री प्रेगनेंसी आई प्री है, तो प्रेगनेंसी हम आई इस है, यस। हाँ, तो हम इस सिनेरियो में तीनों बातें छोटी छोटी करके उसको बता सकते हैं कि यस। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। क्योंकि मैडम लिथियम के बारे में ये कहते हैं कि लिथियम जो है वो साइकेट्री की मेडिसिन में से बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होती है ये। एग्जैक्टली। तो एंड इसको पेशेंट जो हैज गिवन इसको यू जो हिस्ट्री कि मुझे कोई दवाई से फर्क नहीं पड़ा, इसी से मैं कंट्रोल हाँ, रहूंगी। ठीक है। हाँ, तो अगर हम लिथियम जो है वो अगर वो मतलब टेपर ऑफ ग्रेजुअली अगर हो सकती है एमडीटी से, तो वो करके तो फिर जो है ना वो हम, ठीक है मैडम, बस यही पूछना था, यही कंफ्यूजन हो रही डॉक्टर थी। तपस्या ने मुझे ये बताया था कि उन्होंने मल्टीपल मेडिसिन जो है ट्राई की थी लेकिन वो सेट इसी पर हुई है ना, हाँ, तो फिर तो इसलिए आई मैंने इसको गिव यू कंटिन्यू डायरेक्शन रखा। ताकि तुम उसी हिसाब से मुझे हाँ। लेके जाओ। अच्छा चलो। डॉक्टर एक बात और ना, आपकी बात सही कि हमने भी हमेशा यही पढ़ा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होता है। आप मदर को काउंसिल करते हैं कि आप लिथियम कंटिन्यू करना चाहते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन जो इसकी टॉक में एक आखिर में दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके जो डॉक्टर हैं वो इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ वो आपको हाँ। परमिशन दें तो आप कर सकते हैं। हाँ। अगर बेबी वेल हो, कोई इसमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ऐसे में आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हाँ, हैं क्लोज मॉनिटरिंग के साथ। क्योंकि देखो सारी ड्रग्स जाती हैं, सब ड्रग्स जाती हैं जी। ब्रेस्ट, जितनी भी एंटी डिप्रेसिव, एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, ये सब ट्रांसफर होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। तो कुछ ना कुछ हद तक तो जाती हैं, लेकिन हमें कुछ ड्रग्स से ज्यादा वो होता है क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी होती है। तो हम बेबी को मॉनिटर भी कर सकते हैं, या पेशेंट को हम ये बोल सकते हैं कि आप पहले ब्रेस्ट फीड करा लो, बाद में दवाई ले लें। ओके ओके। ठीक है। थैंक यू इसका डॉक्टर। मैं भेजती हूँ, इसका भी ना टेबल में दिखाती हूँ। बस ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो, लिथियम वाला पार्ट जो है, डू नॉट ऑफर अनलेस एटलीस्ट लास्ट रिजॉर्ट आफ्टर फेल्ड एंटीसाइकोटिक्स, ये पहले से ही ले रही होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट malformations, अनसर्टेन रिस्क, ब्रेस्ट फीडिंग,
फिस्टल हार्ट मेल्फॉर्मेशन आंसर ये गलत लिखा हुआ है, ये पुराने उसमें से बना हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेटल टॉक्सिसिटी होती है। कंसीडर स्टॉपिंग ओवर 4 वीक्स इट बिकम्स प्रेग्नेंट इफ बिकम्स प्रेग्नेंट और लिथियम। जैनब आपका सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है कि ये लिथियम पर थी एंड उसकी पीटी पॉजिटिव आ गई और आपके पास आ गई। वो जो मैं शुरू में ग्रेविडा लिखा हुआ था ना, इसको मैं सिनेरियो को ऐसे बना रही थी, लेकिन फिर वो मैंने आगे से एंड में चेंज कर दिया, तो ऊपर से मैं मिस कर गई ना, मैंने रीड नहीं किया उसको। ठीक है। If high risk of the यानी death, तो आपको switch to antipsychotics और stop and restart in second trimester और continue। वही वाली बातें जो उसके आसिया के साथ हमने डिस्कस की। तीन चीजें, तीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। चेक लिथियम फॉर वीकली एंड वीकली फ्रॉम 36 वीक्स। गिव बर्थ इन हॉस्पिटल, ये बताना है जरूर। ठीक है जैनब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होगी। और एक चीज मुझे और याद आई है, आप लिथियम वाली पेशेंट को बोलेंगे कि मैक्सिमम अपनी हाइड्रेशन रखनी है, डिहाइड्रेशन उसको नहीं होनी चाहिए। चेक लिथियम लेवल्स इन लेबर प्लस 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज। स्टॉप लिथियम ड्यूरिंग द लेबर, जैसे वो लेबर में चले गए। ठीक हो गया। बाकी ये दूसरी ड्रग्स के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, ये अभी हमारी इतनी रेलिवेंट नहीं है, हमारी सिनेरियो में ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब एक और लिथियम का प्रोटोकॉल है जो अभी न्यू एक टॉक आर्टिकल में 2 साल पहले आया है। सीजर और स्पॉन्टेनियस लेबर दोनों के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है। स्पॉन्टेनियस लेबर में आपने जैसे पेशेंट को पेन स्टार्ट हुआ है, आप विदहोल्ड कर दोगे लिथियम। सीजर कर रहे हो या आप इंड्यूस कर रहे हो, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। आप लिथियम 24 से 48 घंटे पहले जो है ना, आप स्टॉप करा दो। ठीक हो गया। फिर 12, ये हमने पुरानी वाली बात है कि लास्ट डोज के 12 घंटे के बाद हमने उसके लेवल चेक करने हैं। ब्लड फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लिथियम किडनी से निकल रही है। ठीक है। एंड लिथियम लेवल्स ऑन ब्लड फॉर्म इंक्लूड द टाइम ऑफ द लास्ट डोज एंड टाइम ऑफ सैंपल वॉज टेकन। ठीक हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम 12 आवर्स की बात कर रहे हैं तो वाकई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डोज उसने कब लिया था और आपने सैंपल कब लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास उसके किडनी फंक्शन टेस्ट और लिथियम इन दोनों में से किसी एक चीज में खराबी आएगी या दोनों में आएगी। अगर किसी भी एक चीज में खराबी आती है, उसके रीनल इंपेयरमेंट होती है या फिर लिथियम का लेवल मोर देन 1 है, जो कि लेस देन 1 होना चाहिए, 0.5 तक होना चाहिए, तो विद होल्ड करनी है लिथियम, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है और उसके ब्लड रिपोर्ट्स रिपीट करानी है 12 टू 24 आवर्स के बाद। अगर लेवल्स नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है, तो आप जो है डिलीवरी के बाद जो हम स्टार्ट करवाते हैं वो हम करवा सकते हैं एट द प्री प्रेगनेंसी डोज जो वो पहले ले रही थी। साइंस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी आपको पता होने चाहिए। जो पेशेंट लिथियम ले रही है, ये आपका हिस्ट्री में भी ऐड कर लो, जो पेशेंट लिथियम ले रही है, कि अगर आपको कमजोरी हो, आपको जो है वो कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम है या आपका जो है वो बुखार हो। ठीक है। हाँ डॉक्टर प्रमीशा, मुझे एक बात याद आई कि हम ये भी काउंसलिंग करते हैं ना कि लिथियम वाली पेशेंट अगर है और अगर उसको एक्सेसिव नाजिया वॉमिटिंग है तो फिर हम उसके लेवल चेक करते हैं, क्योंकि नाजिया वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, फिर लिथियम की टॉक्सिसिटी होने का भी डर होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, और लिथियम के साथ जो है वो पानी पीने का बहुत एडवाइस करते हैं, क्योंकि लिथियम हाइड्रेशन किडनी से स्टेटस उसका डायरेक्ट मेंटेन करके रख। होती है। ठीक, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैडम। चलो, जी हो रही है। अब नेक्स्ट ये रह गया था कि जब आपने रीस्टार्ट करवाया तो फिर आप 5 दिन के बाद जो है ना उसके रिपीट करवाते हो। अब ये वाली जो डिटेल्स हैं अगर आपको याद होती हैं तो कर लें, ये जो लास्ट वाली है के बाद में कब तक, ये न्यू चीज है ये वाली चीज। नहीं मैडम, ये कर लेंगे याद, ये इतनी ज्यादा थोड़ी है, मेन यू पॉइंट्स नेवर हैं। नो कि वो अब जो स्टेशन बना हो सकता है लिथियम की आपसे पूरी पूछे, तो फिर आपको ये वाली बतानी आनी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक को आए हुए 2 साल हो गए। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। ये टेबल लिथियम से रिलेटेड है, बाकी इस तरह के 4 टेबल्स हैं, मैं शेयर कर। लिथियम 2% रिस्क ऑफ कार्डियक मेल्फॉर्मेशंस। ठीक है। मेटरनल डायबिटीज इंसिपिडेंस, इंसिपिडेंस का रिस्क होता है मम्मा को, और रीनली एक्सक्रीटेड विद नैरो थेरेप्यूटिक विंडो, रिस्क ऑफ मेटरनल एंड न्यूनेटल टॉक्सिसिटी। ठीक है। कैन इंटरेक्ट विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, हाई ट्रांसफर इनटू ब्रेस्ट मिल्क।
प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस क्या है? बेबी का इको कराना है 18 to 22 वीक्स पे, वो आप 20 वीक्स वाले नॉर्मली स्कैन पर ही करा लेंगी, अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं। सीरियल ग्रोथ स्कैन्स होंगे एंड द लाइकर वॉल्यूम इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस, इसको छोड़ दो। रिकमेंड डिलीवरी इन द हॉस्पिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एड इट एंड मेजर लिथियम लेवल्स मंथली। ये वही पुरानी बात है, 36 तक हम 4 वीकली करेंगे, फिर हम वीकली करेंगे। इफ चेंजेस टू फ्लूइड बैलेंस, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को प्रीएक्लेम्पसिया हाइपरेमेसिस होती है, जो अभी जैनब ने चीज हाईलाइट की, तो फिर भी आप लिथियम के लेवल रिपीट करवाएंगे। दीज टू आर द इंडिकेशन। एक तो नॉर्मल चल रही है और ये इंडिकेटेड है अगर तब कराओगे। इन बिटवीन, ये तो नॉर्मल चल रही है ना, अगर किसी भी टाइम पे पेशेंट को प्रीक्लेम्पसिया या हाइपरेमेसिस होती है तो आप उस वक्त रिपीट कराओगे। एनेस्थेटिक प्री असेसमेंट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, जो बेसिकली 32 पर होती है अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइन। ठीक है, बस यही है इसमें। बाकी ये सोडियम वेलपोरेट वाला देखेंगे। मैडम सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी टिपिकली क्या होते हैं? ये रहे ना, पिछली स्लाइड में आपने हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, मसल वीकनेस, इरिथमिया हो सकते हैं, ट्रीमर्स हो एब्नॉर्मल सकते हैं। मूवमेंट्स, जिटरी मूवमेंट्स होंगी, टैकीकार्डिक होगी, सीजर्स हो जाएंगे। दीज आर द साइंस। ठीक है, सोडियम वेलपोरेट वाला वैसे ज्यादातर इसमें नहीं आएगा, ये तो ओवरऑल उन्होंने सारी ड्रग्स का बताया है, वो अब आपका एपिलेप्सी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो, मैंने सिर्फ लिथियम के लिए ये टेबल शेयर की। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज क्रॉस रिकमेंडेड, लिथियम नहीं है रिकमेंडेड। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप पहले ब्रेस्ट फीड कराओ। अब ओवरऑल मैंने ना 3-4 स्लाइड्स बनाई हैं आपकी, इस सारी जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आइदर इट्स इन द एंटीनेटल पीरियड, आइदर इट्स द पोस्टनेटल पीरियड। तो आपकी जो डोमेन्स हैं जो आपको नहीं छोड़नी, जो कि बिग फेल्स होंगे अगर आप छोड़ देंगी, वो आपको पता होना चाहिए। पहला, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री, फोकस ऑन द हिडन रिस्क एंड सिवियरिटी ऑफ हर इलनेस। करंट मेंटल स्टेटस जो आप सबको पता है, स्लीप, एपिटाइट, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, लो मूड फॉर असेसिंग इफ शी इज करंटली मैनिक, डिप्रेसिव और स्टेबल। ठीक है, आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, साइकेट्रिक, साइकेट्रिक हिस्ट्री में स्क्रीन इफ अनडायग्नोज्ड, ये मैंने बात पहले कर दी। इफ ऑलरेडी डायग्नोज्ड विद अ मेंटल डिसऑर्डर देन आस्क फॉर प्रीवियस एपिसोड्स एंड हॉस्पिटल एडमिशंस। ठीक है, मेडिकेशंस की हिस्ट्री कौन सी ले रही है, करंट डोज कितना है, ड्यूरेशन ऑफ इंटेक, स्टेबल ऑन मेड्स और नॉट, एनी टेराटोजेनिक ड्रग शी इज ऑन। ठीक हो गया। Red flag signs you all should know. Always, always, always ask for self-harm, baby harming and suicidal thoughts. Obviously, postpartum में आप baby harming वाला add कर दोगे, ठीक है? या फिर उसके पहले से अगर बच्चे हैं तो फिर भी ये इंडिकेटेड हो जाएगा कि आपका ऐसा तो नहीं दिल करता कि आप खुद को नुकसान पहुंचा दें या अपने किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दें, सही है? Then comes the social support. Do not skip it. Who is at home? Is your partner aware of your condition? आना था ये। Do you have help at home? सही है जी, क्लियर? मैडम इसका स्ट्रक्चर डिस्कशन करूं मैं? रुको, मुझे ये पूरा करने दो, फिर आप स्ट्रक्चर करना, क्योंकि अब सारी की तो आपको पता चल गई है। एंड में करते हैं। हाँ, क्लिनिकल नॉलेज, एक्सप्लेन करो fetal risk in terms of congenital anomalies related to her meds and the neonatal adaptation things, maternal risk in terms of relapse, recurrence of disease। ठीक है, आपको जरूर बताना है कि कितनी परसेंट ये पोस्टनेटल में हो सकती है एंड शी नीड्स टू हैव द लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, मॉनिटरिंग, डिलीवरी प्लान, पोस्टनेटल केयर, ये सारी चीजें आपको पता है। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट में आपने जागरण नहीं यूज करने। Address concerns and guilt, जो भी whatever she is talking, if she is tearful, if she is guilty for any of her action, तो आपने देर एंड देन उसको एड्रेस करके आगे अपनी कहानी चलाते रहनी है, हिस्ट्री वाली या जो भी आप जिस भी पॉइंट पर। breastfeeding advice relevant to that, the medication whatever she is taking, share decision making regarding the obviously delivery medication, जैसे लिथियम वाली हो गई। फिर पेशेंट सेफ्टी, इसमें बहुत सारा जो है ना पार्ट इम्पॉर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी में, कि ये बहुत नॉन निगोशिएबल डोमेन है आपकी, अगर इसको आपने नहीं फिल किया ना तो आप स्टेशन
को लूज कर सकते हो। लिथियम, अगर लिथियम वाली बात है तो उसकी टॉक्सिसिटी की बातें करो, उसकी स्विचिंग की बातें करो, एनोमली, एको की बातें करो। सोडियम वैल्प्रोएट अगर पेशेंट उस पर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी टेरेट्रोजेनिसिटी पे बात करो। लेबर का प्रोटोकॉल लिथियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा मैं मर्ज कर दिया हर चीज। रेड फ्लैग असेसमेंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी करोगे, उस वक्त भी करोगे और पोस्टनेटल पीरियड में भी करोगे। रेफरल, कब पेशेंट को रेफर करना है। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और सीवियर उसको अगर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, देयर एंड देन पेशेंट विल बी एडमिटेड एंड रेफर्ड टू द, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो ठीक है, आप टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो, सेटिंग आपको दी होती है आपके सिनेरियो में, तो फिर आप एडमिट करोगे, एमडीटी को अपने साथ इन्वॉल्व करके उसे मैनेज कर देंगे। कम्युनिकेशन विद कोलीग्स, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में, इसको मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू की काउंसलिंग में साइकोसिस को अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना तो आप कैसे करेंगे। रुको जरा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पढ़ लूँ। तुम लोग को कैसे पढ़े? ओके, डिप्रेशन कहाँ गया? दिख रहा है ना? लाइट है बहुत मैडम, नहीं नजर आ रहा। लाइट की खैर है, मैं तुम लोगों को पिक्चर भेज दूंगी, अभी बस सुनते जाओ। अगर आपका आप पढ़ लो। डिप्रेशन है तो आपको पेशेंट को बताना है कि डिप्रेशन उम्र के किसी भी हिस्से में, दिस इज व्हेन यू विल डायग्नोज इट, या फिर आपको रोल पीरियड से बात करनी है इन उर्दू, ठीक है। ये डिप्रेशन आ गया, साइकोसिस आगे इसमें आएगा। डिप्रेशन उम्र के किसी भी हिस्से में आपको मुतासिर कर सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसको हम न्यूरो कहते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो वो भी जो है वो डिप्रेशन का बायस बन सकती है, ठीक है। अब इसकी डिप्रेशन की कुछ इलामात होती है, जैसे कि गुस्सा आना, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा कम नींद आना, कम या ज्यादा खाना। शदीद किस्म के केसेस में जो मरीज होते हैं उनको खुदकुशी का ख्याल भी आता है, ठीक है। ये ओवरऑल डिप्रेशन की है डेफिनेशन। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी शदीद जहनी बीमारी है जिसकी अलामात बच्चे की पैदाइश के बाद माँ पर वाजे होती है, ठीक है। बजाय आम जो नॉर्मल होती हैं औरतें जो जो बच्चे की पैदाइश के बाद खुश होती हैं, बजाय खुश होने के माँ गमजदा होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली रोती हैं, रोती हुई पाई जाती हैं, अलग अलग रहती हैं, खुद को हकीर समझती हैं, नींद भी पूरी नहीं होती उनकी, उनको लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है, ठीक है। और या उनको लगता है कि दूसरे लोग समझते हैं कि वो अच्छी माँ नहीं है, ठीक है। खुराक भी उनकी कम हो जाती है और खुदा न खास्ता शदीद नौयत की अगर ये बीमारी हो जाए तो वो खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का भी सोच सकती है, ठीक है। ये हो गई सारी डिस्क्रिप्शन जो आप मरीज को बताएंगी, ठीक है। रीजन, पहले रीजन क्या, अगर किसी को पहले से ये मसला हो या उसके खानदान में ये मसला हो, या फिर जिचकी का जो मामला हैं, जिचकी का जो पूरा दौरानिया है वो पेनफुल हो, उसमें कोई मसला जैसे कि खून बह गया या फिर बच्चे की डेथ हो गई, ये सारी रीजंस भी होती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, ठीक है। अब आ जाओ ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट पर यह एग्जामिनेशन, माँ को आगाही है कि उसको मदद की जरूरत है, ये वाली चीज भी है, या वो बीमार है माँ, हम ये देखते हैं कि माँ को भी ये पता है या नहीं, ठीक है, या उसके खानदान वालों को पता है कि वो किस तकलीफ से दो चार है, ठीक है। अच्छा, हम बच्चे और माँ दोनों पर फोकस करते हैं दौराने इलाज। साइको, इसकी अब ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक ये है कि हम मरीज से और उसकी फैमिली को साथ बिठा के बात करते हैं, जिसको टॉकिंग थेरेपी कहते हैं, जिसको हमारी जुबान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो साइकेट्रिक की मदद से हम दवाइयों पर भी रखते हैं, ठीक है। वो जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसी दवाई है, जो ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हालत बेहतर होती है दवा की मिकदार कम हो जाती है। और यहाँ साइड पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ, उसके शोहर जो हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, शोहर से बैठ के भी बात होती है, अगर शोहर साथ होता है तो आप बात करते हो उससे कि वो उसको सपोर्ट करे, ठीक है। मतवाजन गजा खाएं, नींद पूरी करें, आपकी फैमिली, उसकी फैमिली को काउंसिल किया जाता है कि वो ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें वो खुश रहें और वो नींद भी अपनी पूरी करें, स्ट्रेस फ्री माहौल मुहैया किया जाए, पुरसुकून नींद ली जाए और पॉजिटिव माहौल दें। ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। ये आपके कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स हैं जो अगर मरीज से बात करनी है तो आप मरीज को बोल सकते हो, और अगर आपको वैसे ही स्ट्रक्चर्ड में फिट करनी है तो यू कैन फिट। मैंने बड़ी
जो है ना यूट्यूब से खोल खोल के देख देख के इसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया था। एंड देयर इज अ कोट के देयर इज नो फिजिकल हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर अच्छी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बात, आपको अच्छी लगी है तो आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ समझ आई गर्ल्स? यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो जब मैं ज्यादा बोल लेती हूँ, तो ऐसा लगता है तुम लोग को नहीं मैडम, मैं समझ आ गई, समझ आ गई। बहुत अच्छा करवाया आपने पूरा टॉपिक। मैं तो कहती हूँ कि शायद मैं जितना मर्जी भी पढ़ती तो वो इतना ओरिएंटेड ना होता जितना आपने उसको टू द पॉइंट हमने। आपका लेक्चर लेके ना नींद आने लगती है, सुकून आ जाता है कि हाँ सब पढ़ लिया। अच्छा सही है मैं सुनी बिल्कुल। दूसरी नींद चलिए डॉक्टर पलवशा, डॉक्टर आसिया। चलो बहुत अच्छा है डॉक्टर पलवशा, मैं आपको जज़ाद, आप इतनी मेहनत करके हमारे लिए लेक्चर तैयार करती हैं, मुझे नजर आता है इसमें। यार, ऐसे नहीं बस है कि मेरी बस आप कोशिश क्लास ले ये है रही कि हैं। तुम लोग ना आप तो सिर्फ बहुत वही पुराने पुराने स्टेशन मत पढ़ के जाओ, पूरा टॉपिक कवर करके जाओ ताकि एंटीनेटल पीरियड में भी आए तो चार बातें तुम वहां पे बोल सको। और ऐसे ही है, ये तो नहीं है कि वो हर दफा वही घिसा पिटा पिछला Exactly. वाला दे देते, वो नई चीज हाँ ऐड करते हैं हर दफा। नहीं नहीं, इतने अच्छे नहीं होते सीपीएसपी वाले, वो मॉडिफाई जरूर करते हैं स्टेशन करते हैं, को। क्योंकि अब आपकी यंग यंग सी सीनियर रजिस्ट्रार प्रोफेसर हैं भाई सीपीएसपी में। चलो आसिया, कितना टाइम है? जल्दी से 10 मिनट में अपना स्टेशन स्ट्रक्चर पूरा करो। कहाँ गया? जी चले स्टार्ट करें। एक सेकेंड। ओके मैडम। Assalamu alaikum. I am Asia. I'm exam candidate. I have read the scenario and ready for the structured discussion. After mutual introduction and confirming the given biodata of my patient, I will inquire her missing details, and I will inquire how long she is married for. And then I will inquire her the symptoms of her bipolar disorder, whether she is currently having any symptoms of depression or mania, or she is healthy mentally. And I will inquire about her sleep habits, and inquire about her sleep habits. And as my patient is having the type 1 bipolar disorder, I will inquire about the family history of the same disorder in the patient's family and or the patient's husband's family. Any whether patient is taking other medication other than lithium for this disorder, and from which age, what age she has been diagnosed with this disorder, and for how long she is taking this treatment, and whether patient in the past, whether she has been admitted in the past for this disorder in the hospital, or any history of taking other drug intake or any other investigations are done in the past. And is there any family history of the diabetes, hypertension, or any chronic disorder in the patient's past or in the patient's family? And she is living well with her husband and the in-laws. They are cooperative, and they are cooperative with the patient. As my patient is planning the pregnancy and she has come for the pre-pregnancy counseling, I will tell her that the lithium is the last resort of the treatment in the bipolar disorder type 1. And this drug is teratogenic. It has cardiac side effects over the fetus, and it has the respiratory problems. If patient is taking respiratory, it has the renal disorders associated with the renal failure if the patient is taking the lithium for the longer period of the time. And I will do the examination, the brief examination of my patient, and look for the BMI, her vitals, her respiratory cardiovascular system, and look for the urinary output, her bowel habits, and the superficial and deep abdominal examination. Then I will do her all the baselines, and any specific investigation. I will go for the serum lithium levels and the UCE of the patient specifically, to see the lithium levels and the renal status of the patient. Then I will I will offer my patient the MDT review. I will tell her that we will arrange the MDT multidisciplinary team in her management, and I will refer her to her psychiatrist, her psychologist for the medical review with with her pre-pregnancy plan, to have the information if her psychiatrist allow her to shift to some other medication other than lithium, then it would be good for
the patient, and so if it's possible, then patient should be advised to stop the lithium 3 months prior to the pregnancy and shift it to the safer medication at least for first 3 months of the pregnancy along with the high dose folic acid. But if her psychiatrist suggests that she must continue the lithium for the patient safety and for the control of the patient symptoms, then patient can conceive on the lithium with the monitoring of the lithium levels and with the UC monitoring and with the monitoring of the CBC of the patient. And for the first 3 months, the lithium levels it should be done monthly, and the after the period of the embryogenesis, patient must have the detailed anomaly scan from the senior sonologist to see the evidence of any anomaly in the baby. And then the patient, the echocardiography of the baby should be done between 20 to 24 weeks of the pregnancy. The UC should be done, and then up to 36 weeks, the monthly level should be done, and after 36 weeks, weekly level should be done. Then I will tell my patient the plan for her delivery and the plan for the postpartum period. I will tell her that she must stop the lithium at least 24 to 48 hours before the delivery, and the delivery should be conducted in the high dependency unit with the psychiatrist facility available, with the ICU facility available, neonatology team available, and in the presence of the seniors. And the support should be available during the labor, the husband support and the one-to-one support. And the delivery should be done with the monitoring, and the lithium level should be checked 12 hours after the lithium it has been stopped. And after the delivery, the patient during the delivery also the patient should be kept well hydrated. After delivery, the lithium can be restarted in liaison with her psychiatrist. And if the patient is breastfeeding, then lithium is contraindicated in the breastfeeding. But if patient opts to do the breastfeeding, then she can do the breastfeeding in the way that she should take the drug. She should first do the breastfeeding, then after half hour doing the feeding the baby, she should take the drug. And otherwise, it's better to stop the lithium during the breastfeeding or not to breastfeed. Then I will discharge my patient at postpartum with the red flag signs, and I will tell her that if but there is an increased risk of the flare of the symptoms in the immediate postpartum period, especially in the immediate 4 to 6 weeks, and the patient's attendants, the husband and the family should also be consulted about the red flag signs of the patient's symptoms, the patient irritability, agility, or if there is any symptoms of the extreme depression or the extreme mania, she must report to the hospital and she must report to her psychiatrist for the dose adjustment and for the dose adjustment. That's it, madam. Okay, Asya, you said that she should be delivered in HDU. Why HDU? What's wrong with your patient? मैडम ये जो पेशेंट है लिथियम ले रही है और फिर जो है वो उसकी फर्स्ट डिलीवरी है, और जो लिथियम बाइपोलर वाले पेशेंट्स होते हैं वो तो या तो बहुत ज़्यादा मैनिक होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, तो उसको वहाँ पे और अगर ये हाइपोक्सिक भी हो सकती है तो इसको कम से कम आईसीयू मतलब आईसीयू फैसिलिटी के साथ के जहाँ पे इसके ऑक्सीजन हो, सीनियर स्टाफ हो, उसका हस्बैंड साथ में हो, 1-to-1 सपोर्ट हो, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हो, ताकि पेशेंट का स्मूथली लेबर हो। जो आप सारी चीजें बता रहे हो द रिक्वायरमेंट्स, तो ये तो फिर कंसल्टेंट लेड यूनिट में डिलीवर होना चाहिए ना, व्हाई हाई डिपेंडेंसी यूनिट? हाँ बेटा, मैंने वर्ड गलत इस्तेमाल किया, कंसल्टेंट लेड डिलीवरी सूट with all the facilities available for the monitoring of the patient and the baby. Yes. Very good. 8-10 मिनट से पहले ही कर लिया आपने इसको, 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया। हाँ मैडम, मैं कल 2-3 दिन से अल्लाह का शुक्र है बोलने की प्रैक्टिस काफी ज्यादा करी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। चलो, किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ पर? कोई क्वेरी नहीं है? चलो ठीक है, फिर अब मंडे को फिर अब अलीविया करते हैं, सही है? डॉक्टर डोमेस्टिक वायलेंस भी था ना?
वो बात नहीं तो करेंगे? यार हो अब गया इस डॉक्टर पे परवेज, वो जो हम नेक्स्ट, है 4:45 हाँ बज गए हैं। नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी 1:30 बज गया है यहाँ पे। ओके ओके डॉक्टर। वो छोटा सा टॉपिक है, डोंट वरी, वो मैं मर्ज कर दूंगी किसी ना किसी में।